Hello, guys. Can you hear me? Yes, sir. Thank you, sir, for giving me the controls.
So हम लोग क्या कर रहे थे कल? Guys, NX1 क्लियर है आप लोग को? मार्पल NX1? Yes, sir. तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैंने छोड़ दिया था, मेरे को लगा था आप लोग पूछोगे, बट आप लोगों में से किसी ने पूछा नहीं. सो आई वांट टू आस्क हाउ टू टेस्ट OWS in front of PSC. Test button, anything? Just test button. थोड़ा और एक्सप्लेन करो, टेस्ट बटन से मतलब कैसे करोगे? Sir, before starting this power, we need to open the valves for vent fresh water. Then need to switch on the power. Okay. Then we have to start the pump. Then we need to check the pressure. Once it will check this water content. If it ppm goes more than 15, it will give alarm. And after 20 seconds, if the ppm is more, it will shut off the three-way valve. Okay. कोई और कुछ करेक्शन करना चाहेगा इसमें? एग्जैक्टली करेक्ट बोला है इन्होंने. Can we run OWS in port? No, sir. Yes, as per sir, we cannot run, but if external authority, port state control, if they say, then we can run, and there is a special this You section can was run, there for making an entry. but just wait for a second. What was the discharge criteria for NX1? Somebody said we can discharge in port, right? Suppose there is No, sir, we cannot discharge, sir. We cannot discharge. Yes, sir, we can discharge it. The approved plant and you can discharge in port. No, sir, we cannot discharge, sir. We cannot discharge. If the authority Somebody asks is us saying to, we can. I'm not able to get his name. Who is saying we can discharge? I think Vijay, you are saying we can discharge? No, sir, I am not saying. I am saying we cannot discharge. We cannot. Yes. Then what we will do? Sorry, we run tank to tank, sir. Tank to tank we run, sir. This is the main thing. First of all, we'll say we'll line up the OWS in such a manner that whatever we are running through the OWS will go into the same tank or will remain on board. Even if it's not going to the same tank, then it should remain on board. So first of all, we will check our OWS overboard valve is shut, and before the overboard valve, we will be having one three-way valve, right? Yes, sir, manual valve, which is And connected with the hopper. We had to direct this valve to the bilge holding tank. Now we are going to line up suction side of the OWS. Once everything is lined up, we will start the OWS. Then after starting OWS, on some shifts, there are test button on OWS panel. If we are going to press switch 1 and switch 2, you have to check in your manual what is applicable for your ship. I am telling for my ship. If you are going to press alarm, switch button 1 and 2 together, it will give alarm 15 ppm. And after the alarm, automatic changeover of the valve will occur, and we can see water coming in the hopper. This thing also. There are two three-way valve. One is for the lining up to the bilge. Other one is through the hopper. It's going to the bilge holding tank. Clear now? Yes, sir, clear. yes, sir. Can we discharge in port? Is it possible? No, sir. No, sir, we cannot discharge. Why? Because one of his criteria, ship should be in en route.
Yes, because it's saying ship should be en route. लोड लाइन में क्लियर है जो अब तक पढ़ाया था? Guys, how many chapter in load line? 3 chapters, sir. How many annex? Sir, 4 chapter and 3 annex. 4 chapter and 3 3 annex. Anyone else? We have 3 annex and 4 chapter. Chapter 1 is general. Chapter 2 talk about condition of assignment. Anyone remembers condition of assignment? Zone areas. Condition of assignment. Anyone remember what are the condition of assignment? Survey are asking this question back to back. Sir, structure of the hull and sir, stability, sir, basically 5 points were there. So there were 5 points. Do you remember, or you only remember there are 5 points, or do you remember the points name? So first was structural strength of the ship. Second, preservation of reserve buoyancy. Physical means of preventing water into the hull. Safety of the crew on the weather deck. Potential wetness of the weather deck. Stability in normal loaded condition. Degree of subdivision stability after suffering a prescribed damage. So what ship we were having? Type A and Type B according to load line. Type A ship कौन से थे Type A? Type A tankers. Type A Ship which are carrying liquid cargo, sir, carrying which liquid are carrying cargo. liquid cargo. Why they are having the less freeboard? Chances of water ingress is less, sir. That's why Water integrity of those ships are high, and their degree of subdivision is high. That's why we are having less freeboard. And what is the provision for the crew on the Type A ship for their safety? What is provided? Sir, catwalk. Sir, catwalk is Catwalk is provided. What is Type B ship? Containers. Other ship which are without liquid cargo. Which are not carrying liquid cargo. And in Type B, we can decrease freeboard, right? We can, Type B is having the particular freeboard, right? I told you if it is following the certain regulation like L by D is 15 and block coefficient is 0.68, then we have some freeboard, and we can reduce freeboard if we can provide better integrity, watertight integrity to the ship. Then we can go for Type B60 and B100. And B100 is having same freeboard as Type A ship. Okay, guys, clear till now? I'm giving a quick recap. Guys, clear? Yes, sir. If nobody is responding, I feel like कि मेरा mic नहीं चल रहा है. And then chapter 3 is freeboard. Chapter 4 is special requirement for ship assigned for timber freeboard. And Annex 2 is covering zone, area, and seasonal period. Annex 3 is containing certificate, including the international load line certificate. कौन से ship को वो था exemption और exceptions? किसको exception? सर जो नियरेस्ट डिफरेंट स्टेट्स में जैसे कर रहे हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था इंडिया और श्रीलंका, देन Yes,
In that case, they can give the exemption. And exceptions कौन से ship को है? Ship which is less than 24 meter and existing ship which is less than 150 gross tonnage, warship, fishing vessel and pleasure yachts which is not engaged in the trade. सर्वेयर ये पूछता है कभी कभी लोड लाइन मार्किंग की तीन मेन चीज क्या है, देन यू हैव टू टेल डेक लाइन इज दिस लाइन, देन लोड लाइन डिस्क एंड देन लोड लाइन. कल हमने लोड लाइन को ड्रॉ करना सीखा था. एवरीवन रिमेंबर्स हाउ टू ड्रॉ ए लोड लाइन? A little bit, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द डेक लाइन, फिर हम लोग देखेंगे हमारा फ्री बोर्ड कितने हैं, देन विल कम डाउन to that freeboard and we'll draw a circle. From that circle we will draw, कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे उस सर्कल से? Summer line, sir. Summer line. लोड लाइन का समर लाइन, इसको एक्सटेंड करेंगे तो समर लोड लाइन मिलेगी. देन ट्रॉपिकल निकलेगा 1/48 टाइम्स ऑफ समर ड्राफ्ट से, उतना ऊपर ड्रॉ करेंगे. फ्रेश वाटर निकालने का, फ्रेश वाटर अलाउंस का क्या फॉर्मूला बताया था कल? फार्मूला सर याद नहीं है. W/40 TPC. W/40 TPC से फ्रेश वाटर निकाल लेंगे अलाउंस, फिर उसका 1/48 टाइम्स करेंगे तो विल गेट द ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर की लाइन. देन 1/48 करेंगे, उसको नीचे ड्रॉ करेंगे तो हमें विंटर मिलेगा. और विंटर नॉर्थ अटलांटिक कितना नीचे ड्रॉ करते हैं विंटर से? 50 mm. ये आपका कंडीशन ऑफ असाइनमेंट था. इसको पहले आप अगर कंडीशन ऑफ असाइनमेंट को याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद करिए. वो 6 स्टेप याद करने से पहले हमें ये 3 चीज देखनी है. स्ट्रेंथ चाहिए हमें, डेक पे सेफ्टी चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए. देन स्ट्रेंथ का मीनिंग है एनफ फॉर लोड कैरिंग, लोडिंग कंडीशन. डेक सेफ्टी में बेसिकली क्रू की सेफ्टी, एंड स्टेबिलिटी में हम लोग सफिशिएंट स्टेबिलिटी, रिजर्व बॉयंसी एंड ड्रेन वाटर क्विकली. ऐसे याद करके देन वील गो फॉर द पॉइंट. सेम पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 यही बोल रहा है ना? पॉइंट नंबर 1 यही बोल रहा है ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द शिप, जो उधर दिखाया था लास्ट स्लाइड में. फिर देन दिस इज योर पॉइंट नंबर 3 के पार्ट है ये. रिजर्व बॉयंसी, ड्रेनिंग वाटर टू द हल, स्टेबिलिटी इन नॉर्मल कंडीशन, एंड ये सब आपके पॉइंट नंबर 3 के ही पार्ट है, अलग अलग से लिखे हैं यहाँ पे. देन दिस इज योर पॉइंट नंबर 2, safety of the crew on the weather deck, potential wetness of the weather deck. Now you can remember this point. Guys, can you remember? Yes sir, yes sir. कौन बताएगा आप बिना देखे? चलो, I'll open this slide if someone can tell me using this slide only. Guys, अब तो खुला हुआ है यार. एटलीस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग जितना इन्वॉल्व होगे क्लास में उतना यू विल बी एबल टू रिमेम्बर मोर. अदरवाइज आई कैन टीच एंड गो. That's why I give a quick recap every day, whatever we discussed in the last class. Do you want me to repeat? Yes, sir. So सबसे पहले क्या था? स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द, स्ट्रेंथ लिखा है. स्ट्रेंथ से यहाँ पे जब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम शिप की बात कर रहे हैं. तो किसकी स्ट्रेंथ की बात होगी? शिप के स्ट्रक्चर की. ओके. देन डेक सेफ्टी, डेक सेफ्टी में हम लोग किसकी बात करेंगे?
True. reserve buoyancy, sir. Reserve Deck buoyancy. safety में basically we are talking the safety of crew and potential wetness of the deck. And whenever we say the stability में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, स्टेबल कैसे कैसे हो सकता है. आपकी रिजर्व बुआंसी है शिप की तो वो स्टेबल होगा. अगर उस पे पानी आया है, वो क्विकली ड्रेन हो रहा है, तो भी शिप ज्यादा स्टेबल होगा. अगर शिप में सब डिवीजन ज्यादा है, हमने पढ़ा था ना सब डिविजन्स, Normal load condition. डैमेज स्टेबिलिटी में पढ़ा था ना सब डिविजन्स. डैमेज स्टेबिलिटी में पढ़ा था, करेक्ट सर. हाँ, अगर सब डिवीजन ज्यादा तो होता है तो क्या होता है, आपका शिप डूबता है या लेट डूबता है. लेट डूबता है सर. लेट डूबता है ना, तो फिर मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना. एंड वी विल सी स्टेबिलिटी इन द नॉर्मल लोडेड कंडीशन. इंटेक्ट स्टेबिलिटी कितना है शिप का. आई होप यू विल बी एबल टू रिमेम्बर नाउ. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समर जोन, ट्रॉपिकल जोन, विंटर जोन. समटाइम सर्वेयर आस्क, बट इतना कंडीशन ऑफ असाइनमेंट जितना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हाँ, समटाइम दे आस्क कि समर जोन में क्या है, ट्रॉपिकल जोन में क्या है. सो टाइप ए शिप डेफिनेशन क्या है, डिजाइन टू कैरी द लिक्विड कार्गो इन बल्क. उनका फ्री बोर्ड क्यों कम है, बिकॉज दे हैविंग द high integrated to the exposed deck with only small access opening to the cargo compartment closed by watertight gasket covered of steel or equivalent material and has a low permeability of loaded cargo. Certificate issued by the flag state, validity is for 5 years, and surveys we are having the initial annual and renewal. How to calculate free board, किसी को याद है? Or you want me to repeat? उसके लिए टेबल से आपने बताया था, टेबल एक फॉलो अप करते हैं. For you I'll open the table because आपको याद है. बताओ फिर उसके बाद क्या करेंगे टेबल के बाद. करेक्शन करते थे सर. इस टेबल, ये टेबल किस उस पे बनी थी कि वी आर हैविंग सर्टेन कंडीशंस. वो कंडीशन क्या थी, ये है वो कंडीशन. ब्लॉक कोफिशिएंट कितना है शिप का, 0.68. लेंथ टू डेप्थ रेशियो 15. और क्या था, सुपर स्ट्रक्चर नहीं है शिप पे, इसमें ये भी लिखा था. बिकॉज जो हमारा शिप है वो इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक फ्री बोर्ड यूजिंग दिस टेबल and then we will do the various correction. Like हम लोग का शिप का ब्लॉक कोफिशिएंट 0.68 नहीं है, जैसे शिप का ब्लॉक कोफिशिएंट कितना है, कितना है ब्लॉक कोफिशिएंट, 0.89 है ना ब्लॉक कोफिशिएंट. तो इसने ब्लॉक कोफिशिएंट का करेक्शन किया. ब्लॉक कोफिशिएंट का करेक्शन का फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है. आप सर्वेयर को इतना भी बताओगे जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. हाउ टू कैलकुलेट फ्री बोर्ड में, मिनिमम फ्री बोर्ड में, दिस इज मोर देन एनफ. उसके अलावा अगर आप कुछ याद कर सकते हो, डेट इज ऑसम, बट दिस इज मोर देन एनफ इफ यू कैन टेल द सर्वेयर. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समर फ्री बोर्ड की कैलकुलेट करने के लिए एक टेबुलर फ्री बोर्ड निकालेंगे. वो कहाँ से मिलेगा हमें, टेबल से मिलेगा. उसके बाद अगर आपका शिप 100 मीटर से ज्यादा है तो आप वेरियस करेक्शन करके आप अपना फ्री बोर्ड कम कर सकते हैं. फिर इसमें हमने ब्लॉक कोफिशिएंट का करेक्शन किया. फिर हमने डेप्थ का करेक्शन किया, बिकॉज उसमें ये भी लिखा था कि नो सुपर स्ट्रक्चर, हमारे शिप पे सुपर स्ट्रक्चर है, तो हमने उसका करेक्शन किया. फिर शेयर प्रोफाइल का करेक्शन किया. ये सब करेक्शन करने के बाद जो फ्री बोर्ड आया वो हमारा, ये देखो सुपर स्ट्रक्चर करेक्शन दिख रहा है इधर, पॉइंट नंबर 5. एंड पॉइंट नंबर 6 में क्या लिख रहा है, शेयर एंड ऑफ बॉव करेक्शन. हमने देखा होगा शिप आगे और पीछे में उसका मतलब कंस्ट्रक्शन अलग होता है. अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज इन फ्री बोर्ड, positive shear increase freeboard at bow and end, and therefore overall reduction in freeboard. Freeboard resulting from the addition of all correction is known as your assigned freeboard.
किसी को डाउट है इसको इसमें? Everyone understood how to calculate freeboard? गाइस समझ में आ रहा है ना? एटलीस्ट रिस्पॉन्ड यार, हाँ या ना तो बोलो, एटलीस्ट कुछ पता तो चले. Yes. और I should treat your silence as yes. Okay, then load line survey के बारे में, if anyone has any idea, please. अच्छा एक बात, जो अगर आपका टाइप बी शिप है and you want to reduce your ship's freeboard, then what all criteria means, what all things you should do? आपका टाइप बी शिप है, आप B60 और B100 करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली? गाइस कोरिलेट कर पा रहे हो ना? टाइप ए शिप कौन से शिप थे? लिक्विड कार्गो सर, और उनका फ्रीबोर्ड कम क्यों था? क्योंकि सर वाटर इंटीग्रिटी मतलब बेसिकली इज वेरी हाई थी, हाई थी सर, उसमें मतलब है ना? तो ड्रेन उसका आउट वो, हो जाता था। हाँ, sir. और टाइप बी शिप में क्या था, वाटर इंटीग्रिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उनका नहीं, फ्रीबोर्ड ज्यादा था. yes, नाउ sir. यू टाइप बी में यू वांट टू गो फॉर B60, आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली? वाटर इंटीग्रिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी सर। वाटर इंटीग्रिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, देन यू कैन गो फॉर टाइप बी शिप. बस इतना ही तो आंसर है, इधर लिखा भी हुआ था इस स्लाइड में. बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, एडुकेट वाटर फ्रीइंग अरेंजमेंट. वाटर फ्रीइंग अरेंजमेंट मतलब आपका पानी क्विकली ड्रेन हो जाए डेक से. हेज कवर की स्ट्रेंथ एडुकेट होनी चाहिए. और एनहेंस डैमेज सर्वाइवेबिलिटी. एनहेंस कैसे कर सकते हैं डैमेज सर्वाइवेबिलिटी को? डैमेज स्टेबिलिटी पढ़ा था ना? बेसिकली सब डिवीजन बढ़ाना है इधर। हाँ, बेसिकली वो सब करके हम लोग अपने शिप को टाइप बी को B60 और B100 तक ले जा सकते हैं. और B100 का क्या मतलब है? इट इज एज गुड एज. B100 का क्या मतलब है? उसका फ्रीबोर्ड सेम होगा टाइप ए के, टाइप ए। बिकॉज हमने अपने शिप को इतना बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, इतना वाटर टाइट इंटीग्रिटी और उसके सब डिवीजन से, मतलब उसको बेसिकली उसकी स्टेबिलिटी वगैरह वो सब इंक्रीज करके उसको हम लोग एज गुड एज टाइप ए के स्टैंडर्ड्स पे ले गए हैं. और नाउ इस फ्रीबोर्ड विल बी सेम एज टाइप ए. सो लोड लाइन सर्वे एज ए सेकंड इंजीनियर में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं जब, अगर इंजन रूम में क्या क्या देखते हैं लोड लाइन सर्वे हो रहा है तो? बेसिकली लोड लाइन क्यों क्यों मतलब लोड लाइन हमें कैसे मिल रही थी? बेसिकली सब कुछ वाटर टाइट इंटीग्रिटी पे है ना लोड लाइन में. लोड लाइन में हम जहाँ भी बात कर रहे हैं, टाइप ए शिप का कम फ्री बोर्ड था बिकॉज इट इज हैविंग हाई वाटर टाइट इंटीग्रिटी, राइट? यस सर। सो बेसिकली जितने भी आइटम है जहाँ से हमें पानी इंग्रेस हो सकता है हमारे शिप में, जितनी भी जगहें हैं इंजन रूम में, उन सबको हम लोग चेक करते हैं. तो आपके ओवरबोर्ड वाल है, अगर आप मान लो आपका ओवरबोर्ड वाल होल्ड नहीं कर रहा है, तो आपका मतलब शिप का कम हो गया ना, इंटीग्रिटी कम होगी ना शिप की वाटर टाइट. एम आई राइट? यस सर। और आपका ये ओवरबोर्ड वाल जो होता है, सपोज दिस इज योर ओवरबोर्ड वाल, और ये पानी की पाइप बाहर जा रही है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? जो ओवरबोर्ड वाल और बाहर जो हल्के बाद बीच में पाइप होती है, स्टब पीस बोलते हैं ना? STUB, स्टब पीस बोलते हैं ना?
यस सर। तो इसकी भी कंडीशन, इसकी थिकनेस चेक करते हैं बेसिकली हम। अगर मान लो हमारा ओवरबोर्ड वाल ठीक है और हमारी ये पाइप ही सड़ा हुआ है, तो हमें वाटर टाइट इंटीग्रिटी मिलेगी हमें? नो नो। नहीं मिलेगी ना, उस वाल का कोई यूज ही नहीं है जब उसके आगे का पाइप ही हमारा रस्टेड है या उसमें होल हुआ है। तो उस वाल का कुछ मतलब हुआ नहीं हुआ ना। तो समटाइम्स आपने देखा होगा आपके शिप पे एक थिकनेस चेक करने के लिए मीटर भी दिया होता है। यस सर, यूटी गेज। हाँ, तो आपने देखा होगा कभी कभी सेकंड इंजीनियर जाके इन सब पाइप की थिकनेस चेक करता है और उसको रिकॉर्ड करता है एक फाइल में। नोटिस किया है कभी? सर मैंने नोटिस तो नहीं किया, लेकिन हाँ अभी आई वाज वर्क विद दिस स्क्रबर सर। तो स्क्रबर हाँ में सर वो एसिडिक होता है, दैट पाइप गोस वेरी फास्ट वेस्टेड, बेसिकली एसिडिक नेचर की वजह हाँ, से। क्योंकि वो एसिडिक नेचर होता है वाटर का, इसलिए हम लोग उसकी थिकनेस रेगुलर इंटरवल पे अब चेक करते हैं, क्योंकि हम वी डोंट वांट टू गेट होल इन आवर पाइप एंड फ्लड आवर इंजन रूम, यस सर। राइट? यस सर। यस। इन द सेम वे हमें ओवरबोर्ड वाल और इसके स्टब पीस, क्या ओवरबोर्ड वाल का तो ऑपरेशन से चेक करना है, और स्टब पीस हमें देखना है कि हमें उसमें कोई, तो उसकी थिकनेस वगैरह चेक करनी है कि उसके कारण तो हमारे मतलब शिप इंजन रूम में पानी नहीं आ जाएगा। और ये स्टब पीस बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस स्लाइड में लिखा नहीं है बिकॉज मेनी सर्वेयर्स वांट टू हियर स्टब पीस। देन सी चेस्ट इंटीग्रिटी। सी चेस्ट इंटीग्रिटी से क्या मतलब है? आपके सी चेस्ट में मानो होल हो गया है, तो आपको मिलेगी वाटर टाइट इंटीग्रिटी? क्या आप अपना नॉर्मल ऑपरेशन कर पाओगे? नो। इन द इन द सेम वे अगर मान लो आपके इंजन रूम में पानी आ गया है, तो लोड लाइन में सर्वे के हिसाब से अगर मतलब हमें डैमेज स्टेबिलिटी में भी था ना इमरजेंसी लाइन, मतलब वो दिया हुआ था उसके कंट्रोल प्लान में कि पानी आया तो उसका वाल कहाँ है, पंप स्टार्ट कहाँ से होगा, डू यू रिमेम्बर? तो हम लोग ये सब देखेंगे इन केस ऑफ फ्लडिंग। अगर फ्लडिंग हो जाती है इंजन में किसी भी कारण से, तो डायरेक्ट एंड इमरजेंसी बिल सेक्शन हमारे बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका पीएमएस आइटम भी आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मेनी टाइम सेकंड इंजीनियर चेक्स की इमरजेंसी बिल सेक्शन बराबर ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन बिल्स अलार्म, व्हाई बिल्स अलार्म इम्पोर्टेंट इन लोड लाइन सर्वे? एनीवन? क्यों इम्पोर्टेंट है बिल्स अलार्म? प्राइमरी इंडिकेशन है सर, इंजन रूम स्टार्ट्स फ्लडिंग सर। Yes, because this is the primary indication that the engine room में flooding start हो गई है. Then sounding pipes, you should make sure none of them is hold और उनके cap properly mounted है. Manhole doors, why it is important manhole doors? बेसिकली सर अगर नीचे से हल कहीं ब्रीच हुआ तो ब्रिज हुआ तो इनके, वहां से मैन हाँ, से पानी आ जाएगा सर। पानी नहीं आना चाहिए. Then steering gear bills alarm, same way. Skylight, why skylight is important? ऊपर से भी पानी आ सकता है ना. यस सर। Then we will check the skylight. Stunt tube integrity. Stunt tube integrity कैसे देखते हैं हम लोग? स्टंट ट्यूब का किसी ने वो, सर सील होती है सर उसमें सर। अब मुझे सर एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर आई डोंट नो, बट उसमें सील के अलार्म्स होते हैं सर। उसमें सील अगर पानी बढ़ रहा है तो उसमें सील के लेवल चेंज होते हैं, ऐसा कुछ आई है टेस्ट हाँ करते हैं। बेसिकली वहाँ पे आपके फॉरवर्ड और आफ्ट सील टैंक रहते हैं, उनके लेवल को हम लोग मॉनिटर करते हैं। इन केस इट विल गो डाउन एंड अप इट विल गिव अलार्म। अगर अलार्म मतलब नहीं भी है तो हम लोग नॉर्मली राउंड में उसके लेवल को चेक करते हैं स्टंट ट्यूब के टैंक के। अपार्ट फ्रॉम दैट वी मॉनिटर द टेम्परेचर and we lend the lube oil ashore to know the condition of our stunt tube seals. Then we will check for, आप लोग सब लोग ETO है क्या? None of them is like third or third engineer, fourth engineer? आई डोंट नो सब सर, नो आइडिया सर। ओके। मैंने बोला था आप मेरे को ना एक ETO के ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मतलब टेलीग्राम में, यहाँ इसके IPS इसमें फंक्शन 3 में भेज दीजिए। आई विल जॉइन द ग्रुप, आई विल सी आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। सर अभी जो ग्रुप जो इसमें भेजा हुआ है सर, जो लोग मुंबई से देते हैं, जो लोग पास कर जाते हैं वो अपने डालते हैं सर। अभी आई एम अपेयरिंग फ्रॉम कलकत्ता, सो आई हैव नो आइडिया बिकॉज मेरे
नहीं, जो मुंबई में क्वेश्चन है मोर और लेस इट विल बी सेम, बट आप मेरे को एटलीस्ट एक ग्रुप का लिंक दे दीजिए। आई ट्राई टू सर्च ऑन द टेलीग्राम, मेरे को कोई ईटीओ का ग्रुप मिला नहीं टेलीग्राम पे। अगर आप लोग लिंक डाल सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, देन आई विल जॉइन द सर ग्रुप मुझे एंड रहेगा, लेट्स। मैं डाल दूंगा, लेकिन सर मेरे पास अभी खुद लिंक नहीं है सर। आई एम जस्ट वर्क डूइंग माय ओन एंड ओन प्रिपरेशन एंड ओके ओके, देन वी विल सी इमरजेंसी फायर पंप का बिल्ड अलार्म और ओवरबोर्ड वाल के सर्टिफिकेट होते हैं। वी विल सी वो सर्टिफिकेट की मोस्टली वैलिडिटी 5 इयर्स रहती है। हर ड्राई डॉक में ओवरबोर्ड वाल बाहर जाते हैं, टेस्ट होके वापस आते हैं, देन दे विल गिव सर्टिफिकेट अगेन। इंजन रूम डोर्स प्रॉपर सीलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फनल फ्लैप प्रॉपर सीलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सी वाटर पाइप्स कंडीशन कैसे है और सेल इंस्पेक्शन कैसे है। तो एज पर ईटीओ अगर आपको लोड लाइन सर्वे बोलेगा तो यू कैन सी आपके पॉइंट्स, यू कैन मेक आउट आई थिंक वेरी इजीली आपको क्या क्या बोलना रहेगा। जितने भी अलार्म्स है इट विल कम अंडर यू, फ्रंट ट्यूब के भी अलार्म आपके अंडर आ जाएंगे। देन on some ship it also check funnel flaps, so you can say that also funnel flap operation. And apart from that आई थिंक ईटीओ के इतने ही पॉइंट है, बाकी तो सेकंड इंजीनियर के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। आई डोंट नो अबाउट ईटीओ से कितना पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये था एज इफ यू लोड लाइन सर्वे एज सेकंड इंजीनियर, और अगर पूरे शिप का हो रहा है देन वी विल चेक ऑल द स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट आर वैलिड। लोड लाइन की मार्किंग क्लियर दिख रही है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है शिप पे, एनी चेंजेस टू हल और सुपरस्ट्रक्चर टू बी रिपोर्टेड, स्टेबिलिटी बुकलेट शुड बी अप्रूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, लोड लाइन मैनुअल शुड बी अप्रूव्ड, लॉडिकेटर भी अप्रूव्ड होना चाहिए, डेक की कंडीशन रस्ट फ्री होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेक पे बड़े बड़े रस्ट के पैचेज है। इट क्लियरली शो दैट पुअर मेंटेनेंस एंड मे बी द thickness of plate is gone down. So if the thickness is plate is gone down, then वाटर इंटीग्रिटी सर maybe strength of the ship, that particular section of the plate, due to that particular section of the plate, strength of the ship is not as much as it was before. Weather tight door are sealing properly, machinery space opening, hatch opening, ventilators. When we say ventilator, what does it mean? नेचुरल वेंटिलेशंस दिए रहते हैं ना जगह जगह पे, आपके वॉशन स्टोर पे होगा और पेंट स्टोर पे होगा, हॉस्पिटल के वहां पे रहते हैं नेचुरल वेंटिलेशन जितने भी है, ये सब देखेंगे। देन विंडोज, स्काईलाइट, वेंट पाइप एंड ओवरबोर्ड वॉल्स। लोड लाइन सर्वे एप्लीकेशन टू assigning the authority to inspect the survey will survey the ship and check the vessel comply with COA. COA, now you remember the condition of assignment? यस सर, रफली थोड़ा तो याद होगा। यस सर। Then obtain information from stability and stress data. Once approved, assigning authority give the ship owner direction on a particular position of load line to be marked. Load line permanently marked on the hull by welding. When marks are approved, initially certificate is issued. किसी ने मल्टीपल लोड लाइन के बारे में सुना है? देखिए कभी मल्टीपल लोड लाइन? कहीं यस नो तो बोल सकते हो यार, इतना भी मुश्किल नहीं है यस नो बोलना। No, sir. So can you see this picture? इस शिप पे एक से ज्यादा लोड लाइन दिख रही है आप लोग को? So basically मल्टीपल लोड लाइन क्यों दी होती है? कई पोर्ट का रिस्ट्रिक्शन रहता है बेस्ड ऑन देयर डेड वेट, सो वी यूज मल्टीपल रोड लाइन। और आपके जो पोर्ट भी रहते हैं ना, इनका चार्जेस रहता है कि आपका उसके हिसाब से शिप कितना टनेज का है, सो उसके हिसाब से भी पोर्ट का
चार्जेस के कारण we have multiple load line. So suppose आपका शिप 30,000 टनेज है और एक शिप 20,000 टनेज है, दोनों का सेम चार्जेस रहेगा पोर्ट में? No, definitely not. दोनों का डिफरेंट रहेगा. That's why we use sometime multiple load line so that we can avoid port dues of the vessel, and port dues of the vessel will be assessed on our GRT at the rate shown against the relevant vessel group of GRT. तो इसमें आपको इस वाले स्लाइड में है, ये देख रहे हो 3,000 आपका टन है तो ये कॉस्ट है. अब जब आपका 3,000 से ज्यादा है तो कॉस्ट मतलब इंक्रीज और डिक्रीज उस हिसाब से होता है. उस स्लाइड में वेसल ऑफ 3,000 टन एंड अपवर्ड उसका कॉस्ट था 5,777. वेसल ऑफ 10 टन्स टू अपवर्ड बट लेस देन 3,000. सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि ये 3,000 से 10 टन से तो ऊपर है लेकिन 3,000 से लेस है. तो देख रहे हो इसके पोर्ट ड्यूज कम है उससे. उसका 5,000 समथिंग था, इसका 4,000 समथिंग है. उसका तो एज गुड एज 6,000 ही है पर जीआरटी. तो आप देखो कितना फर्क आएगा पोर्ट ड्यूज में. कैन यू कोरिलेट? उसके नीचे टग बोट का पोर्ट ड्यू दिया है. डू यू अंडरस्टैंड नाउ कि व्हाई वी हैव मल्टीपल लोड लाइन ऑन सम शिप्स? ओनली वन. सर रिपीट कर दीजिए सर एक बार फिर से. सपोज आपका शिप है जो सपोज नहीं है ये एक्चुअल आई थिंक ये इंडियन उसका पोर्ट्स का वो है सर्कुलर. जब आपका शिप अगर 3,000 टन से ऊपर है तो उसका रेट कितना है? 5,700 पर जीआरटी. और आपका शिप जैसे ही 3,000 टन से लेस हुआ तो उसका कोस्टल रेट कितना आ गया? 4,000 जीआरटी, 4,000 पर जीआरटी. सो बेसिकली हमारे मतलब शिप के जीआरटी पे हमारे पोर्ट ड्यूज डिपेंड करते हैं. अब कई पोर्ट मान लो हमें उतना कार्गो लोड ही नहीं करना है और उससे ज्यादा मतलब वहां पे ड्राफ्ट का रिस्ट्रिक्शन है या वो सब रिस्ट्रिक्शन है तो वी गो विद द multiple load line so that we can reduce our port dues. And if you will be having multiple load line then only one at a time used in master custody when port restriction based on dead weight. अगर पोस्ट रिस्ट्रिक्शन का भी कभी कभी वो होता है मतलब इतने से ज्यादा डेड वेट के शिप अंदर नहीं आ सकता तो उस केस में भी हम लोग ये लोड लाइन मल्टीपल लोड लाइन यूज करते हैं. वन सेट टू यूज एट ए टाइम, अदर आर टू बी पेंटेड. एक ही को यूज में रखना है. बाकी आपने देखा होगा इसमें शिप के कलर जैसे ही पेंट कर दिया ना, बाकी को सिर्फ एक ही व्हाइट से पेंट है. Only one load line certificate to use at a given point of time. The director in the principle has no objection of issuance of multiple load line certification to Indian ships if the owner make a specific request for a same. Assignment of multiple load line shall be applicable only for vessel issued by load line certificate under International Convention on Load Line and not applicable on restricted load line certificate. This notice is issued in supervision of the instruction issued by director through उनका नंबर दिया है उन लोगों ने. तो ये प्रोसीजर है अगर आपको इंडिया से लेना है मल्टीपल लोड लाइन का. तो क्या लिखता है ये? एप्लीकेबिलिटी किस पे है? द डायरेक्टर इन प्रिंसिपल हैज नो ऑब्जेक्शन ऑफ इश्यूएंस ऑफ मल्टीपल लोड लाइन सर्टिफिकेट टू इंडियन शिप्स इफ शिप ओनर मेक ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर द सेम. तो इंडियन क्या कह रहा है इंडियन वाला डीजी शिपिंग कि वी कैन इशू मल्टीपल लोड लाइन अगर आपका शिप ओनर रिक्वेस्ट कर रहा है तो. Procedure for assignment of multiple load line. The owner shall make a request in writing to Indian Register of Shipping (IRS) indicating the required dead weight or draft with the multiple load line are assigned. The request will be evaluated and if found acceptable, a memorandum of freeboard will be issued by IRS under intimation to Naval Architecture branch of Directorate.
ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट वाई होल्डिंग द, मतलब जब आपके पास मान लो मल्टीपल लोड लाइन है तो आप कैसे उसको यूज करोगे? whenever the owner desire to change from one assigned freeboard to another, the master shall verify the following: only one load line certificate is in use at a given time. Other load line certificate is kept in a sealed envelope and kept under the safe custody of master. अगर आपके पास एक से ज्यादा लोड लाइन सर्टिफिकेट है, मल्टीपल लोड लाइन आप फॉलो कर रहे हैं आपके शिप पे, तो एक टाइम पे एक ही यूज में रहेगा एंड अदर्स will keep in a envelope and safe in a master custody. Only one set of the mark associated with the load line is in use. जो आप सर्टिफिकेट उस टाइम पे यूज कर रहे हैं, सिर्फ वो लोड लाइन ही हम लोग प्रॉपरली मार्क करेंगे. अदर्स लोड लाइन आर मार्क और पेंटेड आउट विथ सेम कलर इन द बैकग्राउंड. तो जो बाकी की लोड लाइन है उसको हम लोग पेंट कर देंगे सेम कलर. आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने ये वाली लोड लाइन को यूज में रखा है तो बाकी दोनों को शिप के कलर का मार्क कर दिया है. इन केस हमें ये वाली लोड लाइन यूज करनी है तो इसको हम व्हाइट कलर का मार्क करेंगे एंड इनको शिप के कलर का मार्क कर देंगे उस टाइम पे. Guys, give me a moment, I'm getting a call. The new summer draft on each side shall be physical measured each time and recorded in multiple and load line assignment booklet along with the other relevant detail. The company is informed to update the office copy of load line assign booklet in accordance with the procedure obtained in the safety management system. An official entry is made in the ship's logbook about the change in load line marking. समझ में आया इतना? गाइस मल्टीपल लोड लाइन का समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. Yes, sir. Then what they are saying during the annual and renewal survey. अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास मल्टीपल लोड लाइन है तो कौन सी लोड लाइन पे आपका एनुअल और रिन्यूअल सर्वे होगा? Which were in use, sir? Everyone agrees to this, which is in use, उसका सर्वे होगा? So it's saying during the annual renewal load line survey, the RO survey shall verify and endorse the ship copy of the multiple load line assignment booklet while carrying out the annual renewal survey, regardless of dead weight value applicable at that time. The vessel will be surveyed for the compliance of most. क्या होगा most? क्या होगा? हम लोग हमेशा क्या फॉलो करते हैं हर जगह पे? Stringent. हाँ, तो इस केस में क्या stringent है? So, sir. Most severest statutory requirement corresponding to the greatest dead weight. जो भी greatest dead weight है शिप का, उसके हिसाब से जो लोड लाइन बनती है हम लोग उसको सर्वे करेंगे. Okay. सब डिवीजन लोड लाइन सुना है? सब डिवीजन लोड लाइन के बारे में? Basically this is the load line for the ship which is carrying both passenger as well as cargo on board. So to carry passenger we are having the more freeboard. For carrying cargo we are having the less freeboard. तो ये देख रहे हो C1 and C2. अगर पैसेंजर कैरी कर रहे हैं तो कौन से पे आएगा? C1 पे आएगा, C2 पे आएगा?
C2 पे आएगा because we are carrying, we want more freeboard in case of passenger. Why we want more freeboard in case of passenger? उतना ज्यादा हमें टाइम मिलेगा in case of any accident or something will happen. और whenever we are carrying cargo, we need less freeboard. तो उसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए एक ही सर्टिफिकेट मिल जाता है उसको, पैसेंजर एज वेल एज कार्गो के लिए दोनों। उस केस में ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिलता है, C1 C2 ऐसे करके लाइन ड्रॉ की होती है। इसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत सब डिवीजन लोड लाइन पूछ लेते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। सब डिवीजन लोड लाइन इज एप्लीकेबल फॉर द शिप विच इज कैरिंग पैसेंजर, विच इज कैरिंग पैसेंजर। पैसेंजर के साथ साथ क्या कैरी कर रहा है? कार्गो। And in case of passenger, we require more freeboard, and in case of cargo, we require less freeboard. No separate certificate is required. इतना बताओगे तो काफी है इसमें, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछते नहीं है वो लोग। Guys, load line is clear? सर लोड लाइन का ना एकदम थोड़ा बेसिक बता दीजिए, बिकॉज इतना डेप्थ में आई थिंक ईटीओ से पूछा नहीं कभी, लाइक ड्राइंग लोड लाइन ये सब ना। तो अच्छा, बेसिक एकदम मोटा मोटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का ना, एकदम बेसिक लेवल का एक बार बता दीजिए, सो दैट वी कैन रिमेम्बर। अदरवाइज मुझे लग रहा है ये बहुत डीप में हो रहा है स्टडी, जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। मे बी दैट इज माई ओन परसेप्शन, हम मे बी आई आई एम ऑल्सो डोंट नो रॉन्ग। कि आपको वो किस लेवल का पूछते हैं, क्योंकि मेरे को जो मतलब क्लास 2 का उससे पढ़ा रहा हूँ मैं तो। हाँ We सर, are ये मे बी we are ETO, sir. क्लास टू में ये सब पूछ सकता But है। I think this is a combined class for ETO as well as class 2. Okay, sir. Okay, sir. We are ETO, sir, but we didn't understand some. सर थोड़ा सा जस्ट बेसिक में ना, ये लोड लाइन एंड कंडीशन ऑफ असाइनमेंट, जस्ट अगर इन केस पूछेगा तो मतलब इन ए सेंटेंस और टू सेंटेंस वी कैन रिप्लाई, तो उस टाइप का एक बार बता दीजिए, सो दैट वी कैन नोट डाउन आल्सो। Okay. This is for main for ETO, sir, or class 2, sir. This is for both. They told me in this class, ETO and class 2 both are there. So basically what was happening, जो हमारे मर्चेंट शिप्स थे ये ओवरलोड चल रहे थे, तो उसके कारण बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे, तो दे केम विद ए लोड लाइन सो दैट नन ऑफ द शिप कैन गो ओवरलोडेड। overloaded, and in case even after that the means ship are overloaded, it is a punishable offense. So लोड लाइन में बेसिकली दो टाइप की शिप होते हैं लोड लाइन के हिसाब से, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए विच कैरी द कार्गो इन लिक्विड, टाइप बी विच आर not which are carrying the cargo other than the liquid. Type B ship को हम लोग we can reduce their freeboard to B60 and B100, and लोड लाइन मार्क करने के लिए हम लोग कैसे मार्किंग करते हैं, टेबलर फ्रीबोर्ड टेबल से हम लोग उसका फ्रीबोर्ड निकालेंगे, देन वी विल गो फॉर द वेरियस करेक्शन, block coefficient correction, length to depth correction, then after that superstructure correction, bow shear correction। ये सब correction के बाद हमें हमारा final load line मिल जाता है। और condition of assignment क्या है basically? कंडीशन ऑफ असाइनमेंट में सर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है हल्की, प्लस आपका वाटर इंटीग्रिटी है सर, और जो हमारा टेक है वेटनेस है, सेफ्टी क्या है। Basically strength of the ship, deck safety एंड स्टेबिलिटी, ये तीन चीजों में हम लोग को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं कंडीशन ऑफ असाइनमेंट को। स्ट्रेंथ ऑफ द शिप में जब हम बात करते हैं तो हम लोग शिप के स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। डेक सेफ्टी में हम लोग क्रू की सेफ्टी क्या है डेक पे, एंड वेटनेस ऑफ द शिप कितना है। और उसके बाद जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग इंटेक स्टेबिलिटी, डैमेज स्टेबिलिटी और रिजर्व buoyancy और हाउ क्विकली द वाटर ड्रेन फ्रॉम द डेक, उन सब चीजों की बात
हम लोग करते हैं कंडीशन ऑफ असाइनमेंट में। और लोड लाइन में टोटल चैप्टर कितने हैं? 4 chapter 3 annex. 4 चैप्टर 3 एनेक्स। आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा। आई थिंक इससे कम तो कुछ याद नहीं रख सकते हैं। इतना तो याद करना ही पड़ेगा जितना मैंने अभी हाईलाइट किया है। एनेक्स वन, अभी सही है सर, नाउ इट इज गुड। एनेक्स वन में क्या क्या दिया है ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन 24 मीटर से लेस और 150 एग्जिस्टिंग शिप है जो 150 जीआरटी से लेस, वो सब आपके उनको एक्सेप्शन मिला है। एग्जाम्पशन में किस किस को है? अगर आपका कोई शिप है वो एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल वॉयज पे है तो दोनों सेट अपने अंडरस्टैंडिंग से कि उसके वॉयज के पर्टिकुलर कंडीशन ऐसा है कि उसमें ज्यादा सी इतना मतलब रफ सी नहीं है और वो इट कैन go for a voyage, then they can give exemption। और अगर आपका एक पर्टिकुलर शिप है जो कभी फॉरेन गोइंग उस पे जाता ही नहीं है और एक पर्टिकुलर उस वॉयज के लिए उसे जाना है, इन दैट केस आल्सो दे कैन गिव exemption। फिर लोड लाइन आप लोगों ने बोला कि आप लोग को ड्रॉ करने को तो बोलते ही नहीं है, तो दैट्स फाइन। देन कंडीशन ऑफ असाइनमेंट हो गया, टाइप ए टाइप बी भी हमने बात कर लिया। देन सर्टिफिकेट इज इम्पोर्टेंट। सर्टिफिकेट में कौन इशू करेगा ये सर्टिफिकेट? Flag state. फ्लैग स्टेट इशू करेगा। वैलिड फॉर 5 ईयर एंड सब्जेक्टेड टू इनिशियल एनुअल एंड रिन्यूअल सर्वे। इसको हमने भी डिस्कस कर लिया है कि कैसे लोड लाइन कैलकुलेट करते हैं। और अगर टाइप बी शिप है उसको हमें टाइप B60 और B100 बनाना है तो वी कैन मेक इट B60 और B100 बाय डूइंग चेंजेस इन आवर शिप। बेसिकली उसकी डैमेज स्टेबिलिटी इंप्रूव करके और उसकी वाटर टाइट इंटीग्रिटी इंप्रूव करके वी कैन गो फॉर B60 and B100। देन लोड लाइन सर्वे में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप लोग को देखना है जितने भी बिल दिला में वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और क्या देखना है एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? Sometimes this funnel flaps will be electrical, this need to be maintained. This funnel flap sometimes it will be electrical हाँ, means. फनल फ्लैप एंड सन ट्यूब के अलार्म्स आपको ट्राई आउट करने हैं जब भी वो आपके पीएमएस में आते हैं। तो बेसिकली आपको एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये सब अलार्म्स ट्राई आउट करने हैं। Then this pump room door also this alarm will switch. हाँ, अगर पंप रूम आपका है ऑयल टैंकर पे पंप रूम में अलार्म है तो देन आल्सो व्हाटएवर अलार्म व्हिच इज गिवन फॉर द बिल्ज यू हैव टू टेस्ट ऑल द अलार्म। अगर आपका डक्ट किल है, डक्ट किल में अलार्म है, देन यू हैव टू चेक दैट आल्सो। फॉरवर्ड में आपका बोसन स्टोर में भी अलार्म रहता है ना बिल्ज का। मल्टीपल लोड लाइन के बारे में थोड़ा याद रख लेना बिकॉज some port is having a restriction on the dead weight and to reduce the port dues we can have the multiple load line। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको इतना ही याद रखना जरूरी, मतलब आप बोल रहे हो कि बिल्कुल ओवरव्यू चाहिए तो ओवरव्यू तो इतना ही है। एनी डाउट इन लोड लाइन? सर वन स्मॉल डाउट, ये जो लोड लाइन पेंटिंग होता है मतलब शिप साइड में, तो दैट शुड बी ऑलवेज विजिबल राइट सर? अदरवाइज अगर ये सबमर्ज्ड हो जाएगा इसका मतलब है कि ओवरलोडेड है शिप। यस। ओके। Maximum we can load up to how much, sir? This summer lane or Maximum that depend on your where you are sailing, right? We are having different zones, so we are having a different load line. This is summer, this is tropical, this is freshwater। So if you load it till summer and you will go in freshwater, तो आपका शिप अपने आप ही इतना सबमर्ज हो जाएगा, फ्रेशवाटर तक आ जाएगा। इसलिए वो फ्रेशवाटर अलाउंस का लाइन दिया हुआ है। ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर में जाएंगे तो आप उतना ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर तक लोड करेंगे और जब आप समर एरिया में आएंगे तो अपने आप आपका शिप इस लाइन पे पहुंच जाएगा विदाउट डूइंग एनी कार्गो ऑपरेशन। अंडरस्टूड? So then we'll move to PSC then. I hope this is clear.
Can we go for PSC? Yes, sir. Port state control. So can someone give me overview of PSC? क्या PSC क्या है basically? The PSC is a safety net to catch substandard ships. And why they are catching substandard ship? सर उसके लिए तो फ्लैग स्टेट है ना, लोकल एडमिन आपका फ्लैग स्टेट है ना, मतलब that make sure ना you follow all the IMO conventions. वॉइस क्या वो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? My voice is not clear. Clear है sir. आगे. PSC makes sure that these conventions are regularly followed upon the onboard vessels. तो फ्लैग स्टेट क्यों है फिर? Why we are having flag? बोलो. नहीं बीच में कट रहा था सर. Now also it's very cutting. अब ठीक आ रही है? बाकी सबको भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? Only one student is. No sir, voice is clear sir. Maybe some problem on your end then. फ्लैग स्टेट था ना, वो सब चीजों का तो make sure. Sir, can you discuss in English? Yeah, exactly. गाइस आवाज आ रही है ना आप लोग को? Yes sir. Yes. Yes sir, yes sir. So basically, flag state was there for making sure that we are following all the convention, but flag state cannot be present everywhere, right? Yes. So basically, so PSC is a local administration, sir, under which our vessel is entering. So they have all authority to check whether we are adhering to all safety and means regulation led by flag state and IMO. yeah, basically it's helping flag state in checking that we are following all the guideline of our flag state or not. And additionally, what they are doing, they are checking that whatever ship is coming on in their jurisdictions, in their region, they are not substandard. So what is the exact answer for PSC? PSC do two things. First, they are helping the flag state because flag state cannot be present everywhere, right? Our like some ship is having India flag and that ship is not coming to India at all. That sometime happen, right? Yes, sir. So वो जिस भी port में जाएगा, PSC will check the ship and it basically help the flag state, and additionally they check your ship is following local rules and regulation also, apart from whatever IMO is saying, right? जैसे आपका USCG है, USCG क्या बोलता है? सीवेज ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए, राइट? बट आपका IMO नहीं बोलता ना ऐसा. आपका मार्पोल एनेक्स 4 बोलता है ऐसा? No. नहीं बोलता ना. तो वो उतना तो चेक करेगा ही कि आप मार्पोल एनेक्स 4 कंप्लाई कर रहे हैं, कि योर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज वर्किंग. बट एडिशनली ही विल चेक कि आपका सीवेज even if your plant is working is not going overboard, especially in case of US water. Now you understand? Yes, sir. अब मतलब कभी कभी आपने देखा होगा USCG आपका सीवेज प्लांट का सैंपल भी देखता है. जब हम लोग आप लोग के पानी में कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, why you are checking sample? So basically they are helping flag state. तो PHC ने कब हमारी शिप को इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया? एक इंसिडेंट हुआ था जिसका नाम था एमेको कार्डिस. इसमें क्या हुआ था?
On 16 March 1978, in a southwest gale, the Ameco Cadiz passed. तो इसमें बेसिकली ये हुआ था, ये एक सुपर टैंकर था एट 9:46 AM, इसका रडर जैम हो गया. She turned to avoid to the another ship, and her rudder got jammed full over to port. The captain shut down the engine and attempted to make repair, but they were not successful. In meanwhile, the wind began blowing and the northwest, driving the ship toward the coast. By the time tugboat Pacific successfully attached a hawser at 2 p.m. and the Mako Cardigas had drifted 6 nautical miles closer to the shore. For 2 hours, the tugboat struggled to slow the vessel drift, but then tow line parted. The captain of the Miko Cadiz turned his engine on full astern, and this helped slow down the ship drift. At 7 p.m., the captain shut down the engine so that the Pacific could try to attach another hawser. The supertanker dropped one anchor, but fluke broke off. At this point, the supertanker was drifting at 2 knots toward the port cell rocks. A new tow line was successfully attached at 8:55 p.m., but Amico Cardigan hit a rock soon afterward and began to leak. At 9:30 p.m., near the Corn Charai lighthouse, a rock ripped a hole into the ship and flooded the engine room. Because of this incident, PSC came into role, sir. Not only because of this incident, there were various incidents, but after this incident, what happened, we will see in the coming slide. Amico cardiacs contain how many liters? 16 lakh barrels of light crude oil from Ras Toran, Saudi Arabia, and Khara will not go in the name. Weather resulted in complete breakup of the ship, and the oil could pumped out of the wreck, resulting in entire cargo crude oil and 4,000 ton of fuel oil spilled into the sea. So this was the major incident happened in the European water. So after this incident lead to the having port state inspection on the foreign ship. Port state control तो पहले भी था, but port state क्या कर रहा था पहले? वो foreign ship को inspect नहीं कर रहा था इतना. Then after this incident lead to having the port state inspection of the foreign ship in the national water. The idea of having port state control has traveled a long way since then. So after this incident, सबसे पहले what went wrong we'll see, then how PSC come into the play we'll see. What went wrong? इसमें क्या हुआ था, आपका जो शिप था ये, इसका स्टीयरिंग गियर ऑयल टैंक में मेजर लीक हो गया था एंड शिप रन आउट ऑफ कंट्रोल. उसमें लिखा था ना रडर गॉट जैम, तो बेसिकली स्टीयरिंग गियर ऑयल टैंक में लीक हो गया था. Aware of the emergency steering, unable to operate the same because of the oil spread inside the steering flat. कहीं कहीं आपने देखा होगा स्टीयरिंग गियर में इमरजेंसी स्टीयरिंग दिया होता है अलग से. इमरजेंसी स्टीयरिंग तो सब पे ही रहता है राइट, लेकिन अलग से भी दिया जाता है कहीं कहीं पे. तो इतना ऑयल स्पिल था कि लोग उस तक ऑपरेट करने तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे. एंटी स्किड और वुडन प्लैंक नहीं दिए थे. आपने देखा होगा आजकल एंटी स्किड पेंट या वुडन प्लैंक लगे होते हैं ना स्टीयरिंग गियर रूम में, देखा है ना स्टीयरिंग गियर में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, this emergency steering is in case of eye level low, that time also we can control. Now I think you have seen only one steering gear, मतलब उसी में ही emergency steering gear भी incorporate रहता है. बट पहले क्या होता था, इमरजेंसी स्टीयरिंग गियर मेन स्टीयरिंग गियर अलग होता था, और जैसे हमारा इमरजेंसी जनरेटर अलग होता है ना मेन जनरेटर से, ऐसे इमरजेंसी स्टीयरिंग गियर भी अलग होता था. सर उसको ऑक्सिलरी स्टीयरिंग बोलते हैं या फिर इमरजेंसी स्टीयरिंग बोलते हैं? ऑक्सिलरी स्टीयरिंग इमरजेंसी स्टीयरिंग एक ही बात है वो. ओके ओके सर.
अभी सर एक्चुअली पढ़ाया था सर ने क्लास में, तो उस समय आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेरिवेटिव. आई हैव नेवर केम अक्रॉस. I have also not seen that auxiliary or emergency steering gear. हम लोग का बेसिकली एक ही स्टेयरिंग गियर होता है, मतलब 2 स्टेयरिंग गियर होते हैं मोटर, उसमें एक को इमरजेंसी पावर सप्लाई आती है, राइट? यस सर. सो दैट एक्साइड है इमरजेंसी. कई भी शिप पे क्या होता है, आपको 2 स्टेयरिंग गियर दिए रहते हैं. एक मेन स्टेयरिंग गियर होता है और एक ऑक्सिलरी स्टेयरिंग गियर होता है. ऑक्सिलरी स्टेयरिंग गियर इज योर इमरजेंसी स्टेयरिंग गियर. तो इसका रूट कॉज क्या मिला उन्हें? Lack of maintenance, vessel classified as substandard vessel. Port state was informed to target substandard. तो port state को क्या बोला इसके बाद? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है तो सबस्टैंडर्ड शिप को टारगेट करना है. और ये सबस्टैंडर्ड क्यों हुआ? फ्लैग स्टेट नॉट एबल टू इंस्पेक्ट द वेसल. बेसिकली ये वेसल जो था अपने फ्लैग स्टेट के पोर्ट में जाता ही नहीं था, तो उसके सब सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुके थे. तो उन्होंने देखा कि मतलब अगर फ्लैग सेट की मतलब जोन में वेसल जा ही नहीं रहा है, तो वेसल इज नॉट गेटिंग सर्वेड. तो इस कारण से पोर्ट स्टेट ने सबस्टैंडर्ड शिप को टारगेट करना शुरू किया. Grounding of super tanker Amico Cardiac ran aground off coast of the Brittany, France. Massive oil spill, public and political outcry. इस इंसिडेंट के लिए पब्लिक और पॉलिटिकल आउट बहुत शोर मचा यूरोपियन यूनियन में कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है और ये सब इतना नुकसान हो रहा है. तो ये सब के कारण पीएससी ने क्या किया? फॉरेन शिप को इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया. Political party involved because of the different European country, they want to come to a conclusion to avoid root cause. And root cause, maintenance of the vessel is not in the order, substandard. Port state started doing inspection. अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था अभी कि पोर्ट स्टे ने किसके कारण इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया. नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ पोर्ट स्टे केम इनटू द पिक्चर. Yes, sir. क्योंकि फ्लैग स्टेट, अगर शिप फ्लैग स्टेट पे जा ही नहीं रहा है तो उसके सर्वे वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, तो पोर्ट स्टेट स्टार्टेड इंस्पेक्शन सबस्टैंडर्ड शिप. पोर्ट स्टेट अब क्या होने लगा था? पोर्ट स्टेट के कारण सब पोर्ट स्टेट इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, तो मल्टीपल इंस्पेक्शन होने लगा था. अगर मान लो यूरोप में शिप घूम रहा है तो मल्टीपल इंस्पेक्शन होने लगा था. तो ये एक तो टाइम का भी वेस्ट है, मैन पावर का वेस्ट है. यू डोंट वांट ना कि एवरी डे आप लोग के शिप पे पोर्ट स्टेट आके खड़ा हो जाए, आप इवन इफ यू आर इन द यूरोपियन यूनियन ओनली. सो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर क्या बना? एमयू का फॉर्म हुआ. व्हाट इज एमओयू? Memorandum of understanding. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो पेरिस से सबसे पहले कौन सा पेरिस एमओयू बना 1982 में. पोर्ट स्टेट बिकम पीएससी. पोर्ट स्टेट से पोर्ट स्टेट कंट्रोल हो गया. एंड एमओयू बिटवीन द वेरियस रीजन टू सपोर्ट द वेसल टू अवॉइड मल्टीपल इंस्पेक्शन. तो एमओयू बेसिकली वेसल के उसके लिए बना कि मल्टीपल इंस्पेक्शन से वेसल बच सके. एमयू फॉर्म बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज. बहुत सारी कंट्री एक साथ आती है ना एक एमयू बनाने के लिए. Yes sir. तो डिफरेंट कंट्रीज फॉर्म से एमयू came together to work as a team, harmonized system for different PSC as per MAU between different port state. They have common document standard procedure for ship inspection. और पेरिस एमयू का कॉमन डॉक्यूमेंट क्या है? क्या नाम है उसका? थीसिस. मान लो किसी भी शिप ने थीसिस इनकी साइट है जिसपे आप जाके इनका चेक कर सकते हैं सब कुछ, जहाँ पे सारा अपना डाटा रखते हैं, उसको इन्होंने थीसिस बोला है. अगर किसी भी यूरोपियन यूनियन ने कोई भी शिप इंस्पेक्ट किया है तो वो अपने डाटा को यहाँ पे अपलोड करेंगे, सो दैट ऑल द कंट्रीज विच आर इन दिस एमओयू कैन सी कि कौन से शिप का इंस्पेक्शन हुआ है, कब हुआ है, क्या डेफिशिएंसी आया था. ये कैन दे कैन हैव एक्सेस फॉर एवरीथिंग.
As per MOU difference, they have a common database. समझ गए ना common database का क्या मतलब है? Common database समझे ना क्या मतलब है? Yes, sir. हाँ Yes. सर, they share the information. They share the information among themselves. Port state control MOU offer many benefit to port state as well as ship and shipping companies. तो ये बेसिकली इसमें दिखाया है कि कैसे वेरियस पेरिस एमयू बना 1982 में जाके पेरिस एमयू बना. ये पढ़ने का इतना जरूरत नहीं है, सो आई एम स्किपिंग दिस स्लाइड. Belgium and Netherlands are both of the member of the countries of Paris MU. A ship called Antwerp goes through the port state control inspection there. The inspection resulted in various satisfactory. Was satisfactory. Next port is Rotterdam, Netherlands. Having a common database under the Paris MU means that PSC in Rotterdam would know that the ship has already been inspected. This would not only the save cost save some cost in unnecessary inspection at the Rotterdam, but also unnecessary burden on the ship staff. A country can join any MU that suits it. The MU will accept the request from the country if the procedure of the PSC in the country are in line with that particular MU procedure. But it is most beneficial for the country join their regional MOU because they have the common interest in that particular region. So how many MOU we have? The total 9 MOUs. Total? 9 MOUs. Can you name them? So Paris MOU, Tokyo MOU, Latin America, Caribbean, Western Central Africa, the Black Sea region, the Mediterranean, the Indian Ocean, and Riyadh MOU. USC is part of any MOU. The 10th PSC regime. CG acts as a 10th PSC regime. They are not part of any MOU. So basically we have all 9 MOU that you can see on your screen. You can take screenshot of this. No need of remember all. Remember at least 4 and 5. That is more than sufficient. None of the surveyor want to remember you to remember all of them. So Paris MOU, where they keep their data, thesis, and globally where they all the PSC keep their data is known as thesis. Charter, ship owner, flag state, class, all of them get data from the GCs and thesis. Risk profile, profiling good ship, standard, substandard ship, country decide risk profile. We will see how we calculate the risk profile. Basically, we are having the 3 type of ship: low risk, medium ship, risk, and high risk ship. Flag state not present everywhere. That's why posted help flag state to ensure different convention are followed. Ship not calling home port, PSC or RO can act on behalf of the flag state. So we will see first कि risk profile कैसे decide होता है. This is the data from Paris MOU. Paris MOU कैसे calculate करता है? Sorry. So उन लोगों ने एक ऐसा calculator बनाया है. I'm waiting for website to load. टाइप ऑफ शिप क्या है, शिप की एज क्या है, फ्लैग क्या है, फ्लैग का परफॉर्मेंस क्या है, फ्लैग इज आईओएम ऑडिटेड है, फ्लैग या नहीं है, कौन कौन से सर्टिफिकेट फ्लैग ने इशू किए हैं, रिकॉग्नाइज और आरओ कौन सा है, आरओ की परफॉर्मेंस कैसी है, इज ईयू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर आरओ, आईएसएम कंपनी की परफॉर्मेंस आईएसएम के हिसाब से कैसी है, हिस्टोरिक पैरामीटर फॉर 36 मंथ कैसा है, 36 मंथ में उसका पर्टिकुलर वेसल का परफॉर्मेंस कैसा है, एटलीस्ट वन इंस्पेक्शन यस और नो मार्क करना है, इसके बेसिस पे दे कैलकुलेट द रिस्क. ये कैलकुलेटर पेरिस एमओयू की वेबसाइट पे ही है. कैन यू सी द नेम? पेरिस एमओयू की ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप किसी भी शिप का खुद से रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेट कर सकते हैं, वेदर दिस इज हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क.
समझ में आया कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं कौन से शिप का क्या रिस्क प्रोफाइल है? आपको दिख रहा था ना स्क्रीन, या आपको स्लाइड ही दिख रहा है अभी भी? स्लाइड दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? शिप रिस्क प्रोफाइल लिखा दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है। ये पेरिस एमओयू की वेबसाइट है, इस पे ये लोगों ने कैलकुलेटर डाला है, ये दिख रहा है शिप रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेटर, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही डाला हुआ है। तो सबसे पहले टाइप क्या आपके शिप का, शिप की एज क्या है, 12 साल से ज्यादा या कम है, फ्लैग कौन सा है, फ्लैग का कैसा परफॉर्मेंस है। समटाइम आपने देखा होगा ना, सर्वेयर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका शिप डिटेन हो जाता है तो हाउ डज इट अफेक्ट फ्लैग स्टेट, देखा होगा आपने। तो ये इस पर्टिकुलर में भी आपका फ्लैग का परफॉर्मेंस कैसे है, उस फ्लैग स्टेट के कितने शिप डिटेन हो रहे हैं, कितने शिप को डेफिशिएंसी मिल रहा है, उसके यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे है वो डालेंगे। देन फ्लैग फ्लैग जो है IMO ऑडिटेड है या नहीं है, कौन कौन से सर्टिफिकेट इशू कर रहा है फ्लैग, फिर आपका आरओ कौन है, उस आरओ का परफॉर्मेंस कैसा है, और वो आरओ यू रिकॉग्नाइज नहीं है कि नहीं है। ईयू का क्यों बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, क्योंकि ये हम पेरिस एमओयू देख रहे हैं। फिर आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, लास्ट 36 मंथ में आपके शिप का कैसा परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे अगर ये 5 आया है, 5 से ग्रेटर आया तो हाई, लो लो हाई, लो और मीडियम, दे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ these things. The ship risk profiling is recalculated on a daily basis overnight. Every night they recalculate the ship risk profile, taking into account changes in the parameters such as 36-month history and company performance. So every day आपके ship का profile they calculate on the basis of 36-month data as well as on the company performance. मान लो एक particular company और इसके ship detain हो रहे हैं, तो आपका शिप हाई प्रोफाइल हाई रिस्क में होगा या लो में होगा या मीडियम में होगा? पेरिस में आया था उसका तो हाई में होगा सर, हाई हाँ, रिस्क। क्योंकि आपके कंपनी के शिप डिटेन हो रहा है, एक पर्टिकुलर फ्लैग के हो रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर फ्लैग विल बिकम हाई रिस्क। उस शिप के जितने भी फ्लैग वेसल हैं वो सब, मतलब जो उस फ्लैग के जितने भी शिप हैं वो सब हाई रिस्क में आ जाएंगे। द लेटर मींस इंस्पेक्शन रिजल्टिंग ऑफ द अदर शिप विद इन द सेम ISM कंपनी may have immediate effect on ships. देख रहे हो, अगर आपका एक शिप डिटेन होता है तो आपके दूसरे शिप पे it will affect. इतना समझ में आया ना PSC में? यस सर। तो हमने रिस्क प्रोफाइल भी देख लिया कि वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा शिप हाई रिस्क है, लो रिस्क है या मीडियम। हमारे शिप की रिस्क प्रोफाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। नाउ we will see what are the various type of PSC inspection. कौन कौन सी टाइप की PSC इंस्पेक्शन होती है? एक तो सर CIC बेस्ड होती है। Okay, what is CIC? कंसंट्रेटेड Concentrated inspection campaign. campaign, yes sir. Then sir, generally कब last से कब inspection, होता है, कब से sir, कब होता है yearly CIC? sir CIC sir, every quarterly this is they set a target Every MOU wise, quarter? every quarter, sir. Okay, good. At least you know something. It is good. They are not calculating every quarter. They are last 3 months of the year. It will come in the coming slide. And
What was the last CIC? What is the last topic? 2022 में कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है ना CIC? अभी सर अभी चल रहा है SCCW पे. दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन आवर सर्टिफिकेट. हमारे SCCW के सर्टिफिकेट सब वैलिड है कि नहीं है. उससे पहले कौन सा था? 2020 में 21 में कौन सा था? 2021 में स्टेबिलिटी है. वही सेम 2020 का था. बिकॉज 2020 में वो लोग CIC कर नहीं पाए. क्यों नहीं कर पाए? कोविड के कारण. सो दे डिड इट इन द 2021 एंड दिस ईयर टॉपिक इज 2022 का क्या है? सर STCW. STCW. सर 2021 का क्या? 2021 का सर आपने क्या बताया था टॉपिक अभी? स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी. ओके. सर्वेयर समटाइम आस्क दिस टॉपिक नेम, स्पेशली जो अभी रिसेंट में चल रहा है 2022 का. ये तो याद होना ही चाहिए. बाकी 2021 और 2020 ना भी याद रहे तो इट इज फाइन, लेकिन 2022 तो होना ही चाहिए. एंड बट सर ये MOU वाइज डिफरेंट होता है ना CIC से सर, कि ऑल सेम रहता है सर? MOU वाइज डिफरेंट होता है बट दे इट कैन बी सेम. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिस MOU का. और नॉर्मली सर्वेयर को आप पेरिस MOU का बताओगे वो चलता है, बिकॉज दे डोंट वांट कि आपको सबका याद रहे. और नॉर्मली जो बाकी सब MOU भी है ना, वो भी पेरिस MOU को फॉलो करते हैं. लाइक ये पेरिस MOU का टॉपिक था बट इंडियन MOU ने भी इसे कंसीडर किया है और इंडियन MOU भी यही फॉलो कर रहा है राइट नाउ. ओके सर. सब MOU का डिफरेंट हो सकता है बट नॉर्मली दे फॉलो पेरिस. सो आप पेरिस का याद रखेंगे, दैट विल बी फाइन. So apart from CIC, we are having the initial inspection. Initial inspection में क्या होता है? आपके शिप का जनरल इंस्पेक्शन होता है. Then we are having more detail inspection. More detail inspection में क्या होता है? अगर आपकी PSC शिप पे आई और उसको क्लियर ग्राउंड दिखा. What is clear ground? हमने पढ़ा था ना Annex 4 और Annex 5 में. Clear ground. Yes sir, any deficiency related to the marpole or item, something like that sir. Yeah, if they feel कि आपका सीवेज सॉरी गार्बेज मैनेजमेंट प्लान के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिर आपको क्या नहीं पता है, OWS चलाना नहीं आता है, तो these all are clear ground for the PSC that you don't know the system. So if PSC finds such kind of thing, they can go for more detailed inspection. And third one is expanded inspection. Expanded में क्या होता है? It is based on the age of the vessel. देखा था ना हमने अभी रिस्क प्रोफाइल में. अगर आप शिप 12 साल से ज्यादा था तो दे आर कीपिंग इन दे आर कंसिडरिंग इट इन द मीडियम और हाई. बट दैट डिपेंड्स आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, आपकी फ्लैग स्टेट का परफॉर्मेंस कैसे है, उस सब पे भी वो डिपेंड करेगा. सो बेसिकली these are the type of PSC inspection. When a PSC inspector come on board the vessel, he would conduct one of 4 type of PSC inspection. These inspection type are initial, more detail, expanding, and CIC. So initial inspection, general inspection of the ship. Expanded में क्या बताया था? Initial inspection of certain type of certain age. More detail में अगर PSC को clear ground for non-compliance दिखा, और CIC any of the 3 inspection that could focus on specific area of high level of deficiency which have encountered by PSCO where a new convention required to have recently entered into the force. Initial inspection, and initial inspection is a general inspection of certificate and a round on a deck, engine room, galley and common area. Normally आप लोगों ने देखा होगा PSC आके इतना ही चेक करता है, राइट? Yes sir. वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ORV चेक करेगा, बाकी सब डॉक्यूमेंट चेक करेगा और वो राउंड के लिए निकल जाता है. नॉर्मली दे गो फॉर इनिशियल इंस्पेक्शन. अगर आपकी कंपनी के शिप बैक टू बैक डिटेन हो रहे हैं, आपके फ्लैग के बैक टू बैक डिटेन हो रहे हैं और दे फाउंड द क्लियर ग्राउंड, देन दे कैन गो फॉर मोर डिटेल इंस्पेक्शन. अगर PSC को दिखा कि शिप पे कुछ गलत हो रहा है,
So they will go for more detailed inspection. During an initial inspection or expanded inspection of the ship, the PSC inspector may have certain finding clear grounded the point out of non-compliance of the certain regulation. In this case, the PSC inspector would change the scope of inspection to the more detailed inspection. Understood? Expanded inspection. Expanded inspection is the initial inspection in a wider scope. Same है, initial inspection जैसा है, but wider scope है इसका. It generally carried out on a ship that fall under a high risk category compared to the other ship. For example, for Paris MU, expanded inspection is done for the ship. Oil tanker अगर आपका 15 साल से ज्यादा का है और उसका GRT 3000 से ज्यादा है, तो Paris MU will go for expanded inspection. गैस टैंकर और केमिकल टैंकर 10 साल से ज्यादा पुराने हैं, तो दे विल डू एक्सपेंडेड इंस्पेक्शन. बल्क कैरियर 12 साल और पैसेंजर शिप 15 साल से पुराने हैं, तो आपका क्या होगा? एक्सपेंडेड इंस्पेक्शन होगा. नाउ व्हाट इज क्लियर ग्राउंड? क्लियर ग्राउंड में क्या क्या आता है? मान लो आपका कोई मैंडेटरी सर्टिफिकेट है, वो मिसिंग है, आपके पास IOPP सर्टिफिकेट नहीं है, तो एक क्लियर ग्राउंड हुआ ना PSC के लिए कि आप IOPP मतलब Annex 1 नहीं फॉलो कर रहे. हुआ ना क्लियर ग्राउंड? Yes, sir. Oil record book entries that do not add up and point toward a possible MARPOL violation. PSC inspector will focus on checking MARPOL element during the more detailed inspection. Crew member not aware of their duty during the emergencies. Abandoned ship. In this case, the PSC inspector will go for concentrate on more emergency preparedness of the ship during a more detailed inspection. Multiple violation of rest hour. In this case, the PSC inspector would focus on MLC related element on more detailed inspection. तो अगर उसको जिस पर्टिकुलर जोन में लग रहा है, उसको लग रहा है आप मार्पोल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर मार्पोल पे आपका मोर डिटेल इंस्पेक्शन करेगा. अगर उसको लग रहा है कि आपको उसने ड्रिल कराया या फिर किसी को, कभी कभी पीएससी तो नहीं पूछता है, लेकिन वेटिंग इंस्पेक्टर अगर किसी ने वेटिंग किया होगा, तो वेटिंग इंस्पेक्टर वगैरह आपको फायरमैन आउटफिट डॉन करने के लिए बोल देते हैं ना, बोलते हैं ना कभी कभी. सर अभी तक मैं वो ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन हाँ USCG जरूर सर बोलता है. यूएससीजी काइंड ऑफ पीएससी ना, पीएससी है हाँ बस USCG उसका सर अलग से. हाँ USCG सर बोलता है. हाँ, अगर उसने बोल दिया कि डाउन करो और कोई नहीं करके दिखा पा रहा है, then they point out. they will do the more detailed inspection of emergency preparedness. मान लो जूनियर ऑफिसर नहीं कर पा रहे हैं, तो they will check the record कि आप ड्रिल वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगर कर रहे हैं तो उसकी फोटोग्राफ है कि नहीं है, और they can go for the drill. और they will ask सीनियर ऑफिसर कि सीनियर ऑफिसर भी अवेयर है कि नहीं है इन सब चीजों के. अगर वो भी अवेयर नहीं है, तो इट बिकम द डिटेनेबल थिंग, राइट? अगर आपके रेस्ट आवर फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो MLC का जो भी एरिया है उसमें they will check. What is CIC? Port State Control. MU runs a campaign to concentrate their inspection on one area of ship operation. These areas are chosen by the MU meeting. MU की meeting में ये area choose होते हैं. For example, Paris and Tokyo MU have started CIC campaign on navigation safety, which will be carried out from September 2017 to November 2017. तो ये 3 months के लिए चल रहा था, सितंबर से लेके नवंबर तक. ड्यूरिंग दिस कैंपेन पीरियड द पीएससी इंस्पेक्टर ड्यूरिंग यूजुअल शिप इंस्पेक्शन विल चेक द सर्टेन एरिया रिलेटेड टू दैट कैंपेन. इसके कैंपेन की एक चेकलिस्ट बन के आती है, वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली टिक मार्क करते हैं. द इंफॉर्मेशन आर ऑन एरिया आर टू बी चेक एंड डेवलप ए क्वेश्चनर. क्वेश्चनर जो बोला है ना, वो चेकलिस्ट ही है उनका. The PSC inspector will follow the questionnaire and he will answer each question based on the finding on the ship. Here is the questionnaire for the, मतलब आगे उसका आएगा कैसा उसके questionnaire है. एक सेकेंड आपको अभी दिखाई देता हूँ. ये देख रहे हो, ये चेकलिस्ट बना हुआ है उनका. Do the number of seafarers, ये do the number of seafarers serving on board confirming the minimum safe manning requirement of the ship of the vessel or not. अगर उसको लग रहा है नहीं है,
मिनिमम सेफ मैनिंग के लिए जितने होने चाहिए, नो आएगा, यस आएगा। डू द मास्टर एंड ऑफिसर होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, मैंने बोला था ना STCW चल रहा है, अभी बोला था ना STCW इस साल का, यस सर, यस सर। ये उसी के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मास्टर इन सबके पास वैलिड सर्टिफिकेट है कि नहीं है। डू द वॉच शेड्यूल ऑफ कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ STCW, पॉइंट नंबर 7 पढ़ रहे हैं आप। पॉइंट नंबर 6, डू द रिकॉर्ड ऑफ द आवर्स और एस इंडिकेट द कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो ये सब इसकी चेकलिस्ट है, तो अगर इसमें यस यस है तो यस भरना है उसे, नो अगर मान लो किसी के पास STW ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं रिक्वायरमेंट का वॉच कीपिंग के लिए, तो इधर नो आ जाएगा। कैन द सीफेरर ऑन बोर्ड द वेसल कम्युनिकेट द इफेक्टली विद ईच अदर ऑन द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द शिप, यस है तो यस, नो है तो नो, और नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल। उसको इस चेकलिस्ट को अकॉर्डिंगली भरना है जो भी आपका PSC इंस्पेक्टर ऑन बोर्ड आया है। तो आप मान लो आपका CIC हो रहा है, आपके पर्टिकुलर शिप पे CIC का वो क्वेश्चन लेके आया है, कैन ए PSC इंस्पेक्टर डिटेन द शिप अगर आपका CIC में फेल हो रहे हैं तो? डिटेन कर सकता है? ऑफ कोर्स सर, डिटेन कर सकते हैं ना सर, दैट इज। आपने उसके क्वेश्चन में भी देखा होगा, इधर क्या लिखा है, डिटेंशन लिखा है। अगर आपके पास नहीं है, डू द सीफेयर ऑन बोर्ड होल्ड ए पर्टिकुलर होल्ड ए वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास नहीं है तो ही कैन डिटेन योर वेसल। तो उन्होंने इसी क्वेश्चन में लिखा है, अगर इनमें से किसी का भी आंसर नो आ रहा है तो ही कैन गो फॉर डिटेंशन। ओके, PSC inspection result, irrespective of the type of PSC inspection carried on board, either it will result in no deficiency or some deficiency. If there are no deficiency, we just file the PSC inspection report and inform the company about PSC inspection. If there is a deficiency, the deficiency can fall under one of these category. कौन कौन सी deficiency normally होती है? Detainable deficiency होती है, या कई बार बोल के जाते हैं ना मास्टर को, डिपार्चर से पहले ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा भी बोलता है ना, बोलता है ना PSC इंस्पेक्टर की डिपार्चर से पहले ठीक कर लेना। और then deficiency that need to be corrected within a time range, or you can correct before the next port. So this kind of the, अब डिटेनेबल, अगर आप उसने आपको डिटेनेबल डेफिशिएंसी दी है तो क्या होगा? If the ship is detained because of one or more observed deficiency, the PSC inspector will provide a notice of detention. Notice of detention ऐसा कुछ लिखा दिखता है, और इसमें क्या क्या लिखा है, आपके शिप का नाम लिखा है, IMO नंबर लिखा है, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री क्या है, कि टाइप क्या है, ओनर कौन है, एजेंट कौन है, कौन सी बर्थ पे है, कॉल साइन, ग्रोस ने, तो आपके शिप की सारी इंफॉर्मेशन, मास्टर का नाम भी आपके इस पर्टिकुलर उसमें लिखा है डिटेंशन में। तो इसमें क्या लिख रहा है, इट इज प्रोहिबिटेड टू शिफ्ट द शिप टू अनदर बर्थ विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द पोर्ट स्टेट कंट्रोल टू प्रोसीड सी विदाउट प्रॉपर नोटिस ऑफ रिलीज। सो अगर आपके शिप को डिटेंशन मिल गया है तो यू कांट इवन शिफ्ट द बर्थ बिना अपने शिप को रिलीज कराए, आप ये सब नहीं कर सकते हैं। In this case, the master of the ship cannot move the ship from the berth without the permission of port state. Once the detainable deficiency are rectified, the master need to contact the port state control officer for verification of the corrective action. फिर वो पोर्ट स्टेट कंट्रोल ऑफिसर आपके शिप पे आएगा, देन ही विल वेरीफाई जो भी आपने आपने डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए किया है। द पोर्ट स्टेट इंस्पेक्टर कंट्रोल विल बोर्ड द वेसल and conduct a verification of the corrective action taken and rectification of the deficiency. When satisfied, the PSC will issue the notification of नोटिफिकेशन ऑफ रिलीज। हाँ, नोटिफिकेशन ऑफ रिलीज देगा वो, और नोटिफिकेशन ऑफ रिलीज ऐसा कुछ दिखाई देता है, उसमें वो लिख के देंगे
कि री इंस्पेक्शन हुआ है शिप का एंड शिप हैज बीन रिलीज, और उसमें टाइम और डेट सब कुछ लिखा होगा। सो कौन कौन से कोड बेसिकली पीएससी इंस्पेक्टर देता है? कभी कभी आपसे ये सब भी पूछा जाता है कि कौन कौन से कोड है पीएससी जो दे के जाता है। Code 30 for detention, sir. Code 17 rectify before departure, sir. और 10 सर, एक कोड 10 भी देता है ना सर, 10। हाँ, कोड 10 क्या है? उसमें आप डेफिशिएंसी रेक्टिफाइड में आप कि आपने उसको बताया ये डेफिशिएंसी थी आपके शिप पे, अब वो शिप पे ही है, आपने रेक्टिफाई कर दी, तो यू विल राइट दे डेफिशिएंसी थी एंड अंडर द कोड 10 दे रेक्टिफाइड। एंड कोड 15 है, कोड 15 रेक्टिफाई डेफिशिएंसी एट नेक्स्ट पोर्ट। कोड 16 है रेक्टिफाई डेफिशिएंसी विद इन 14 days। कोड 17 rectify deficiency before departure. I'll open that page for you guys. हाँ ये रहा। कोड 18 क्या है? Within 3 months you have to rectify that particular deficiency. Code 30 detainable deficiency. Code 40 next port inform कर देते हैं वो लोग। Code 45 rectify deficiency at next port. Code 50 flag state को inform करेंगे। Code 55 flag state consulted. Code 70 RO informed. Deficiency that need to be corrected with a time range apart from the detainable deficiency, and code 17 deficiency, the PSC inspector may give deficiency with an action code such as to be corrected at next port. Code 15 16 to be rectified within 14 days. In this case, if the port of the same is in same MAU, a request of the inspection must be sent by the master to port set control intimating that deficiency has been rectified. If it is a different MAU, then email should be sent to PSC confirm that the deficiency has been rectified. अगर आपका सेम MAU में शिप अभी घूम रहा है तो क्या करता है मास्टर? री इंस्पेक्शन के लिए बोलता है पीएससी को कि हमारी डेफिशिएंसी रेक्टिफाई हो गई है, यू कैन कम फॉर द री इंस्पेक्शन। अगर आपका डिफरेंट एमएयू हो जाता है तो पीएससी को एक कंफर्मिंग मेल भेजता है कि डेफिशिएंसी हैज बीन रेक्टिफाइड। Again, for code 16 deficiency 2, the master must send an email to the PSC within the 14 days confirming that the deficiency has been rectified. तो ये CIC थे। 2022 का इसमें नहीं लिखा है, 2022 का SCCW है। 2020 में क्या था? स्टेबिलिटी था। और क्या लिख रहे हैं? इन जनरल पोस्टपोन ड्यू टू द कोविड क्राइसिस। एंड आपका CIC कितने महीने के लिए होता है? 3 months के लिए। कब से कब तक? ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, सितंबर में शुरू होकर नवंबर में खत्म होता है। तो ये 3 months एवरी ईयर आपका CIC पेरिस MU का होता है। ये देखो, ये आपका टोक्यो MAU है और ये पेरिस MAU है। दोनों का CIC लेकिन सेम है SCCW पे, दिख रहा है? Joint concentration inspection campaign on SCCW. A member authorized of the Tokyo and Paris MAU on port state control will launch a joint CIC on SCCW. The campaign on SCCW aim to confirm that the number of the seafarers serving on board and their certificate are in conformity with the relevant provision of SCCW convention and code and applicable safe manning requirement as determined by the flag state administration. All seafarers serving on board who are required to be certified in accordance with the SCCW convention hold an appropriate certificate or a valid dispensation or provide document of proof that an applicable for an endorsement has been submitted to the flag state administration. The seafarer on board hold a valid medical certificate as required by SCCW convention, the watchkeeping schedule, and as our compliance with the requirement. So ये बेसिकली पेरिस MAU का था, लेकिन टोक्यो MAU ने भी इसके साथ मिलके CIC का सेम टॉपिक रखा है।
और इवन इंडियन एमओयू का भी सेम टॉपिक है. कोड 10 था डिटेनेबल डेफिशिएंसी. This code is used when a noted deficiency has been confirmed to rectify and the PSA has been checked and found to be rectified. Code 15, rectified deficiency at next port. This code is used when a deficiency cannot be remedied in the port of inspection. In such case, the maritime authority may allow a ship to proceed to another port if appropriate under condition as determined by the port of inspection. PSC can give you a combination of code also, like code 15 plus code 50, 40, code 30. Code 30 क्या था? Detainable deficiency plus code 15. So PSC can give you combination of code also. Code 16, rectify deficiency within 14 days. Although in principle all deficiency must be rectified before departure, code 16 can be used in case of the minor deficiency which to this provisional judgment of the PSCO is not hazardous for the safety, health and environment and does not require to immediate follow-up. अगर आपको डिटेनेबल डेफिशिएंसी मिल गई है तो आप क्या करोगे? पीएससी ऑन बोर्ड ही है और आपको वो बोल रहा है कि मैं आपको कोड 30 देने वाला हूँ. Then what you will do? Sir, then the ship will be detained and the class will follow when he'll do the. तो आप नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी पीएससी इंस्पेक्टर आते हैं अगर उसको 3-4 पॉइंट मिलते हैं तो वो 3-4 पॉइंट नहीं लिखता है ना, 1-2 पॉइंट दे के जाता है. नॉर्मली आपने ये देखा होगा. Yes, sir. वो क्या चीफ इंजीनियर और मास्टर मिल के उसको कन्विंस करते हैं ना कि ये मत लिखो सर, ये मत लिखो, ये मत लिखो, जो भी उन्हें लगता है कि इज अफेक्टिंग बैडली ऑन देम, राइट? Yes, sir. तो कोड 30 दे रहे हैं तो आप ले लोगे सीधा. कोड 30 में तो सीधा पूरी रेपुटेशन गई ना मास्टर और चीफ इंजीनियर की. Yes, sir. नहीं लोगे ना कोड 30. आप कन्विंस करोगे ना कि सर और कोई कोड दे दो, कोड 30 मत दो, मैं डिपार्चर से पहले ठीक कर लूंगा सर, कोड 30 मत दो, 1 घंटा दे दो, आप इधर ही रुको, मैं अभी ठीक कर लेता हूँ. ऐसा है ना. हम ट्राई करते हैं ना कि शिप को डिटेनेबल डेफिशिएंसी ना मिले. सर ट्राई तो करते हैं बट सम पीएससी इंस्पेक्टर्स मैं सेकंड शिप में देखा था सर, वी गॉट डिटेन्ड बिकॉज़ ऑफ क्रू वाज नॉट. क्या डेफिशिएंसी थी? 3 deficiency were there, sir. One was fireman outfit was not as per the new standard. Okay. And the sign off of crew. COVID situation था सर, 15 months हो गया था on board सबको. And third was 6 gas detection system was not working on board. Gas carrier. No sir, it was product tanker sir. Product tanker, okay. So पीएससी वाले ने नहीं माना. पीएससी वाला क्यों नहीं माना? 15 महीना क्रू ऑन बोर्ड है. इज इट सेफ? Yes sir, so that सबसे मेजर तो यही था कि 15 months आपका क्रू ऑन बोर्ड है. सो दैट शिप क्रू मतलब उनका क्या मेंटल स्टेट रहेगा, फटीग का लेवल क्या रहेगा, nobody can understand. 15 month on board is a very big thing. Yes sir, the first COVID this 2020 this happened. So basically these all things PSC and everything is working in our favor, but we treat them like they are our enemy, right? But they are doing for us, right? Yes sir, yes sir. अगर उसने आपको इस केस में बोल दिया कि अपने क्रू चेंज करो, otherwise I'll detain the ship, this is for the betterment of the crew, right? Yes sir, yes sir. I think nobody wants to continue after 15 months. Definitely sir, after detention the company changed within 2 days the whole crew. Within 2 days. Before that company was not changing only. Yes sir, yes sir. Every time they are giving some kind of excuse that ये नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एजेंट नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है. But as soon as the PSC detained, they did that thing in the 2 days. So PSC flexed these all things are for our favor, but somehow we treat them as an enemy. अगर PSC आके रेस्ट आवर में देख रहे हैं तो basically they are checking for us, right? They are doing for our good thing.
कि आपके क्रू को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो तो हम लोग के अच्छे के लिए देख रहे हैं, बट हम लोग खुद हमारी आदत रहती है कि हम उसे एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं, बट नॉट, दे आर वर्किंग फॉर द क्रू। लाइक ऑन माय लास्ट शिप व्हाट हैपेंड, मतलब मेरे शिप पे तो नहीं है, बट आई हर्ड समवेयर, जो ऑस्ट्रेलिया का पीएससी है, अभी अगर आपके शिप पे क्रू है और पिछले 1 साल से कोई भी शोर लीव नहीं है, तो आपका ऑस्ट्रेलियन पीएससी क्या कर रहा है, आपके शिप को बाहर, मतलब पोर्ट से बाहर नहीं जाने देगा until unless someone will go on the shore leave. Yes, sir. I also heard about this. हाँ, तो basically they are doing for the betterment of the people on board the ship, but वो सब हम लोग का बैडली अफेक्ट भी करता है, बिकॉज नो चीफ इंजीनियर वांट्स कि उसका शिप पे ऐसा दिखे कि क्रू को रेस्ट नहीं मिल रहा है। ऑन द अदर साइड कंपनी प्रेशराइज द चीफ इंजीनियर कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है, इतने क्रू से ही मैनेज करो। तो ठीक है, वो डेट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब, बट बेसिकली दे आर वर्किंग बेटरमेंट ऑफ क्रू। अगर मान लो आपका शिप में पाइप में होल हुआ है, आप तो ट्राई करते ही हो अपनी तरफ से मैक्सिमम ना, कभी कभी होता है कि आपको ड्राइवर बुलाना पड़ेगा, बाहर से पानी प्लग वो लगाने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन डू सम रिपेयर, बट आपका कंपनी सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड यू आर डूइंग पुट्टी वुट्टी मार के किसी तरह चला रहे हो, बट डेट इज डेंजरस फॉर अस, राइट? Yes, sir. अगर मिड सी में हो गया, मेजर लीक हो गया, तो कौन, कंपनी थोड़ी ना आएगा बचाने के लिए, नहीं आएगा ना, हम लोग को खुद ही करना है जो करना है। तो बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑन बोर्ड द शिप। सो अगर आपको डिटेनेबल डेफिशिएंसी मिलेगी, तो हम लोग उससे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको डिटेन, शिप को डिटेन मत करो, कोड 17 के अंडर डेफिशिएंसी दे दो। कोड 17 क्या था? डिटेनेबल में क्या होता है, आपको रेक्टिफाई करना ही है ना बिफोर डिपार्चर, देन ओनली यू कैन मूव। कोड 30 यही है ना? Yes, sir. और कोड 17 क्या है? rectify डिपार्चर है सर। दोनों सेम ही ऑलमोस्ट ना, उसमें क्या है, 30 में भी तो वही है, डिटेनेबल डेफिशिएंसी का मतलब भी तो वही है, बट व्हेन इट कम्स टू डिटेनेबल, वो आपके शिप को बैडली इफेक्ट करता है, और बैडली इफेक्ट, इट विल नॉट ओनली अफेक्ट योर पर्टिकुलर वेसल, इट विल अफेक्ट योर कंपनी, इट विल अफेक्ट योर फ्लैग स्टेट। और अगर आपका इस सबसे किसका रेट डिसाइड होता है, चार्टरिंग का रेट डिसाइड होता है ना, कोई शिप बार बार डिटेन हो रहा है, आप उस पे अपना सामान बेचना चाहोगे? पैसे भी ज्यादा मांग रहे हैं, बार बार डिटेन भी हो रहे हैं, आप उस पे अपना सामान भेजना चाहोगे ऐसे शिप पे, या ऐसी शिप पे अपना सामान भेजना चाहोगे जिसपे पैसे तो सेम ही मांग रहे हैं लेकिन वो डिटेन नहीं हो रहा है? तो कौन से शिप को आप हायर करना चाहोगे अपने सामान भेजने के लिए? जो शिप डिटेन नहीं हो रहा है जो क्योंकि आपका सामान टाइमली भी पहुंचेगा, और पैसे तो सेम ही मांग रहे हैं। कौन से शिप का इंश्योरेंस का वैल्यू ज्यादा रहेगा, ज्यादा इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा? जो शिप बार बार डिटेन हो रहा है या जो शिप कभी डिटेन नहीं हुआ, किसका इंश्योरेंस ज्यादा होगा? बार बार डिटेन जो हो रहा है ना? आपने ये भी देखा होगा ना, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस जब कराने जाते हैं, तो पहले कंपनी पूछ लेती है ना, मेडिकल कंपनी, कि सर आपको कोई बीमारी तो नहीं है, पूछती है ना। है। Yes, sir. बार बार डिटेन हो रहा है तो मतलब शिप में कुछ खराबी है, इसलिए बार बार डिटेन हो रहा है। तो जिनको Yes. जो बीमारी डिक्लेयर करते हैं, या जो जिनकी एज ज्यादा है, उनका हेल्थ प्रीमियम ज्यादा रहता है ना। Yes, इन द sir. Yes. सेम वे, जो शिप बार बार डिटेन हो रहा है और उनकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है, उनका प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। इफ नॉट कन्विंस, अगर कन्विंस नहीं हुआ है वो कोड 17 देने में, देन यू विल इन्फॉर्म कंपनी, फ्लैग स्टेट एंड क्लास, एंड स्टार्ट रेक्टिफाइंग द डेफिशिएंसी एज सुन एज पॉसिबल। PS port state control officer should inform the master of the right of appeal and relevant procedure in case of detention. कैसे प्रिपेयर करोगे अपने शिप को पीएससी इंस्पेक्शन के? समझ में आया ना? अगर कोड 30 दे रहा है, सर्वेयर बोलते हैं अगर आपको कोड 30 मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? समझ में आया ना? Yes, sir. We'll try to convince him. मानो आपका इमरजेंसी फायर पंप है, उसने लोकल स्टार्ट किया, वो नहीं चला, या फिर रिमोट स्टार्ट किया, वो नहीं चला, और वो कोड 30 दे रहा है, तो आप क्या करोगे?
we'll try to convince him 417 हम उसको बोलेंगे सर लोकल चल रहा है, अगर मान लो आपको इमरजेंसी स्टार्ट रिमोट से स्टार्ट नहीं हो रहा, उसको बोलेंगे सर लोकल चल रहा है, विल कीप वन मैन, मतलब लोकल वहां पे जो बार बार जाके इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो एक आदमी को या फिर वहीं पे वो चीज लगा देंगे कि वहीं खड़ा रहेगा, बट डोंट गिव अस कोड 30। तो कुछ भी करके हम लोग को उसको कन्विंस करना है कि हमें कोड 30 नहीं चाहिए, विल ब्रिंग दैट टू द कोड 17, ताकि कोड 30 and code 17 are same. In code 30 also you are doing rectification before departure, right? You cannot move, and code 17 भी तो वही बोलता है ना। देखो इधर दोनों कोड सेम ही है, बस लैंग्वेज अलग है। बस एक अगर 30 मिल गया तो आपके ऊपर टैग लग जाता है कि आपका शिप डिटेन हुआ है, राइट? बट कोड 17 में भी तो वही है, और इसमें क्या फर्क है दोनों में? कुछ फर्क नजर आ रहा है? मेजर डिफरेंस है कुछ अपार्ट फ्रॉम ए टैग? कुछ फर्क नहीं है ना? गाइस कुछ फर्क है कोड 17 कोड 30 में? नहीं सर, है तो वैसा ही, डिटेन तो दोनों में हो रहा है। कोड 17 भी यही बोल रहा है, यू हैव टू रेक्टिफाई बिफोर डिपार्चर, और कोड 30 में डिटेन हो रहा है। कोड 17 में भी अगर उसने बोल दिया कि आपको कोड 17 मिला तो यू कैन नॉट डिपार्ट, अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया है। सर फिर इन दोनों कोड्स में फर्क क्या है सर? वही वो उसके ऊपर पीएससी ऑफिसर के ऊपर है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ना कि अगर आपको कोड 30 दे रहा है तो हम उसको कन्विंस कर दें कि वो कोड 30 से कोड 17 पे आ जाए, बस इतना ही फर्क है। अगर मान लो उसको आपकी शिप में बहुत ज्यादा जगह जगह कुछ मिला तो वो उसका इतना एनोय हो गया कि उसको लग रहा है कि आपको कोड 30 बेसिकली आप इट डिफेम योर शिप रेपुटेशन, नॉट ओनली शिप, कंपनी, ये सब का भी आपको जैसे डिटेन हो जाता है आपके ऊपर एक टैग लग जाता है कि ये शिप डिटेन हुआ था। सर अगर मैं उस शिप की इंसिडेंट को अगर मैं रिकलेक्ट करूं तो कोड तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सर क्या है, लेकिन जैसे डिटेन हुए थे तो फिर उसके बाद क्लास ने पूरा फुल इंस्पेक्शन किया था सर शिप का, एंड देन क्लास ऑफर्ड पीएससी टू इंस्पेक्ट, देन पीएससी सेड कि ओके फिर आपने कर उसने दिया। कोड 730 के साथ उसने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कोड दिया होगा, आपके फ्लैग स्टेट को इन्फॉर्म किया होगा। तो फ्लैग स्टेट ने जब देखा कि आपको कोड 30 मिला है, उसने आपके फ्लैग स्टेट को बता दिया, तो फ्लैग स्टेट जब भी चाहे उसको जरूरी लगता है कि उसको इंस्पेक्शन करना है, दे कैन कम एंड इंस्पेक्ट योर वेसल। फ्लैग स्टेट जब चाहे आपके शिप को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो अगर उसने कोड 30 प्लस कोड 50 दे दिया होगा तो आपके फ्लैग स्टेट को उसने इन्फॉर्म किया होगा कि आपके शिप पे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अगर वंस द फ्लैग दे इन्फॉर्म द फ्लैग स्टेट, शायद उसके बाद पीएससी दोबारा नहीं आया होगा फ्लैग स्टेट के इंस्पेक्शन के बाद। दोबारा नहीं आया सर फिर। हाँ, तो फिर फ्लैग स्टेट ने ही इंस्पेक्ट करके शिप को रिलीज कर दिया होगा। So this class represent flag state, this means बेसिकली व्हाट यू सेड, क्लास रिप्रेजेंट फ्लैग स्टेट? class are on behalf of flag state. नहीं सॉरी, मैं क्लास बोला, फ्लैग आया होगा। और हाँ, और फ्लैग जो आपकी क्लास फ्लैग है वो क्लास मतलब फ्लैग जो है वो आपको डिफरेंट आरओ को डिफरेंट क्लास उसको सर्टिफाई कर सकती है कि क्लास बी ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्लैग स्टेट कैन इंस्पेक्ट द वेसल। Okay sir. क्या क्या प्रिपरेशन करोगे पीएससी इंस्पेक्शन से पहले? नॉर्मली क्या क्या प्रिपेयर करते हैं हम लोग? All LSA FFA items, sir. Light board, fire alarm system working, wheel alarm, safety items. These are main major concerns, sir. Emergency fire from emergency lights. Basically, whenever we know the PSC will come on board for the inspection, we'll check all the documents are valid और सब डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी है फॉर द इंस्पेक्शन। सी फेरर के डॉक्यूमेंट्स जिसमें मेडिकल, हम लोग की सीओसी, ये सब आ जाता है। देन एलएसए, ड्रिल, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, लॉग बुक, थर्ड मेट मेंटेन करते हैं ना एक, अब तो पीएमएस में ही करते हैं नॉर्मली, पहले एक थर्ड इंजीनियर भी साइन करने जाता ना ब्रिज पे एक फाइल को। Yes, sir. FFA and LSSA maintenance manual.
हाँ फाइल साइन करने जाते थे ना पहले, थर्ड इंजीनियर भी ब्रिज पे वीकली साइन करके आता था, वरना फिर पोर्ट आ रहा है तो पोर्ट से एक दिन पहले जाके सब पे साइन करके आएगा, थर्ड मेट मार्क करके रखता है, इधर इधर साइन थर्ड इंजीनियर का आएगा। तो वो सब हमारे अगर वो अभी भी मेंटेन हो रहा है किसी शिप पे फाइल के फॉर्म में, देन वी हैव टू चेक कि वो सब बराबर है कि नहीं है, LSN FFA, देन PP प्रॉपर है, सर्विस रिकॉर्ड सब बराबर है, कि क्लोजिंग वाल काम कर रहे हैं, फायर डैम्पर काम कर रहे हैं, डैम्पर्स काम कर रहे हैं, फायर डोर काम कर रहे हैं, इमरजेंसी जनरेटर, इमरजेंसी लाइट, नेविगेशन ब्रिज, पब्लिकेशन एंड चेक्स, ORB OWS फंक्शनिंग, इफ एनी डिफेक्ट इन, अगर कोई डिफेक्ट मिला आपको, खुद के राउंड में डिफेक्ट मिल गया, then you will inform company will inform the flag state and flag state can give dispensation, and अगर आपके पास कोई dispensation है we will declare it to the PSC। वो डिफेक्ट को हम PSC को पहले ही बता देंगे, इससे पहले कि PSC हमें बताए कि आपके शिप पे ये डिफेक्ट है। ठीक है गाइस, आई होप PSC समझ में आया होगा। Excuse me, sir. Yes, sir. Yes, Sir, what preparation as a ETO we have to prepare for PSC, because this question has been asked previously, that as a ETO what preparation you will do for okay, PSC? you tell me आप कितना सोच सकते हैं, बाकी I will Sir, tell। like battery maintenance, emergency generators, bilge alarms and all, and Emergency lightings. emergency lightings, hmm, and And basically your paperwork, जैसे LSFFA maintenance yeah, manuals are there, then we have to sign them, no? File records basically. आप okay. इंसुलेशन चेक करते हैं आपके MSBD का बिफोर PSC विल कम, डू यू Yes, वांट कि PSC yes, allow? yes, sir. Both 220 and 440, both insulation we have to check. वो भी चेक करना है, और लॉकआउट टैग आउट का किट भी देखने को बोलते हैं ना कभी कभी PSC कि हाउ Yes, यू sir. डू द लॉकआउट टैग आउट। Yes, sir, yes. all related to safety, alarms, all trips, और all आप लोग का तो ये बहुत फेमस है, रबर मैट देखता है ना PSC, उसके पीछे स्टैम्प है या नहीं है, उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं है, Yes, sir. Yes, ऐसे कोई भी रबर मैट नहीं बिछा सकते ना हम लोग। yes, sir. Insulation gloves and all, main हाँ, switchboard near to main इंसुलेशन switchboard. ग्लव्स चेक करता है, और Uh, सब yes, अलार्म्स चेक कराता है। yes, आपके sir. जनरेटर पे भी अलार्म है, मेन इंजन के भी, स्पेशली ओवरफ्लो अलार्म, Yes, sir. लो प्रेशर अलार्म, Yes, sir. you should Fuel be oil thorough leak. Yes, fuel oil leak of alarm, so you yes, should be sir. thorough with all those things। ऐसा नहीं होना चाहिए कि PSC के सामने you are looking for your pressure calibrator, is it a Yes. good impression or is it a clear ground? अगर आप उस टाइम पे अपना प्रेशर कैलिब्रेटर ढूंढ रहे हैं PSC के सामने, Clear grounds, sir, because basically you are not aware of your equipment. basically it's a clear ground that you are not doing these pressure calibration on the regular basis, that's why you are looking for the equipment right now। तो आपके PMS में आता है ना ये सब, Yes, sir. तो PMS क्या है, इज अ पार्ट ऑफ योर SMS। सो PSC को क्या पता चला, यू आर नॉट फॉलोइंग ISM, so PSC can go for the more detail inspection। और क्या चेक कर सकता है PSC, स्टीयरिंग गियर अलार्म करवाता है, Yes, sir. Steering gear and all. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. और और emergency communication, sir, steering gear से communication है, और कम्युनिकेशन, इमरजेंसी कम्युनिकेशन हो गया, इमरजेंसी वाला। sometimes we say no, sir, emergency से रेडियो कभी बार रेंज नहीं मिलता है, then we हाँ say how you are communicate। हाँ, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वो भी दिया रहता है ना, साउंड पावर टेलीफोन। Yes, sir. Yes, sir. और in some ships talkback system is also provided, sir. आपकी इमरजेंसी लाइटिंग भी देखता है ना वो, जब डेक के राउंड पे जाता है बोलता है ना इमरजेंसी लाइट ऑन कर दो, उसको बाकी लाइट से मतलब नहीं है, उसको इमरजेंसी लाइट से मतलब है। Yes, sir. तो ये सब आपको PSC के आने से पहले, अगर आप मान लो टैंकर्स पे हैं तो आपके एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट रहती है ना, Yes, Yes, sir. Yes. अगर उसमें कोई भी क्रैक है एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट में, तो ये इसका क्या मतलब है, Sir, integrity, sir, basically जो it is the certification उसका उस- sir valid, मतलब वो it is not खत्म हो गया ना, वो खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। एक्सप्लोजन प्रूफ बचा ही नहीं हो, नाउ इट्स नॉर्मल।
तो can we have a normal lights on in such area जहाँ पे पहले explosion proof लगा था? नहीं हो सकता ना, वो explosion proof ही रहेगा. और आपको ये सब लाइटिंग की कंडीशन चेक करनी है. And this emergency stop switch buttons like for galley and this fuel oil pumps and all. Yes. और कभी-कभी वो लिमिट स्विच भी ट्राई आउट करवाता है. अगर आपकी लाइफ बोट वगैरह लोअर कर रहे हो या क्रेन वगैरह है तो उनकी लिमिट्स भी चेक कराता है. तो आपको एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ये सब चीजें पहले से देख के रखनी है. अब आपको ऐसा नहीं हो कि उसके सामने ये सब चीजें आप ढूंढ रहे हो. और सर जनरली फ्रेश वाटर टैंक अलार्म जिससे हाइपरमिस्ट वगैरह सिस्टम हाइपरमिस्ट होता है तो है, आपका फ्रेश वाटर, आपका तो फायर डिटेक्टर है तो ये इनकी टेस्टिंग भी करवाता है. वो सब तो है ही है. उसका रिकॉर्ड पूछ लेता है सर. हाँ, और कभी-कभी और उनके स्पेयर्स भी चेक कराता है कि क्रिटिकल स्पेयर्स दिखाओ मुझे. करेक्ट करेक्ट सर. तो एज ए ईटीओ जब भी आपको शिप पे पीएससी आ रहा है तो यू शुड बी थोरो विद ऑल दिस थिंग. स्पेशली क्रिटिकल स्पेयर तो आपको पता ही होने चाहिए. मेरे साथ हुआ था एक शिप पे. वी वर हैविंग पीएससी इंस्पेक्शन और उसने बत्ती साहब को आके बोला मेरे को फायर डिटेक्टर का स्पेयर्स दिखाओ. तो बत्ती साहब एक स्पेयर लेके आया. इट वाज लुकिंग लाइक ओल्ड, बट हम लोगों ने उसको बोला कि नहीं सर ये न्यू है. बट उसने बोला कंडीशन देके आई एम नॉट अग्रिंग कि ये न्यू है. लेकिन हम लोग उसके पीछे बढ़े रहे कि सर न्यू है, ये न्यू है, वी कैन पुट एंड वी कैन शो यू दिस इज न्यू. फिर उसने फाइनली बोला अगर ये न्यू है ओके आई एम ट्रीटिंग एज ए न्यू, बट कीप इट लाइक ए न्यू, डोंट कीप इट लाइक ए गार्बेज. फिर ये बोल के गया हम लोग को. और मार्केट दैट दिस इज ओनली फॉर इमरजेंसी. ठीक है. ठीक है guys, we'll break now. Maybe same time we'll continue tomorrow. ओके सर. Okay Thank you. guys. Thank you, sir.